हेलो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, इन साहब को मैं पिछले 5 साल से, जब से ये पॉडकास्ट बनी है ना, मैं तब से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज़ आई हैव बीन फॉलोइंग हिज़ वर्क फॉर वेल ओवर एट लीस्ट 8 टू 10 इयर्स। इनको शायद प्रोबेबली याद नहीं होगा, बट फेसबुक पे समहाउ वी कनेक्टेड वेरी अर्ली। एंड सो खामोशी आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ व्हाट ही इज़ बीन अप टू, एंड इट हैज़ ऑलवेज़ fascinated मी बिकॉज़ वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान, एक आपको बिग टेक वाला पाकिस्तानी मिलता है, बहुत सारा, आई हैव सीन दोज़ एंड आई फॉलो दोज़ एज़ वेल। दोज़ आर वेरी स्टैंडर्ड जेनेरिक पाथवेज़, राइट? सो फास्ट लम्प्स, जीआईके से आप ग्रेजुएट करते हैं, यूईटी से आप ग्रेजुएट करते हैं, आप एक जॉब अच्छी आपकी किसी बिग टेक में लग जाती है, आप उसमें ग्रो करते हैं, 4-5 स्विचेस मारते हैं, इवेंचुअली लाइफ में कहीं पहुँच जाते हैं। एंड देन देयर इज़ द मोर अनकन्वेंशनल राउट, जिसमें आप स्टार्टअप्स करते हैं, आप ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, आप एक्चुअल में अपनी जो टेक्निकल प्रावस है उसके ऊपर जा करके यू ब्रेक शिट एंड अपोलोजाइज लेटर। एंड दैट्स अ स्पेस जहाँ पर पाकिस्तानीज, यू रेयरली फाइंड देम, क्योंकि वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज टू बी मोबाइल इनफ। हमारे पास वो एक्सपोजर नहीं होता। हमारे पास आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास वो ट्रस्ट नहीं होता कि हम भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी अ सर्टन level of delusional to even begin to think about doing such things. And therefore, this particular gentleman, when I saw him and the work that he has been up to, it has always fascinated me. I think maybe a couple of times I reached out to him before as well. But मैं देख रहा था, he hasn't spoken to a lot of people, and I'm very, very glad and completely honored that this time around when I reached out to him, he accepted. We have with us today Ahmed Awais. He is the founder and CEO of Command Code, which was Langbase a little while ago. But exact story kya hai, we'll get from him. Ahmed, first of all, thank you so much for taking the time out and joining us on the show. Well, Muzammil, thanks a lot for this intro and thanks for having me. Amazing podcast you have here. So great to be part of it. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करता हूँ, जस्ट ट्राइंग टू गेट अ सेंस ऑफ योर बैकग्राउंड। वेयर वर यू बोर्न, अर्ली लाइफ कहाँ पे थी, व्हाट वाज एजुकेशन लाइक, एंड बिफोर यू एंडेड अप इन द यूएस, बिकॉज माय अंडरस्टैंडिंग इज यूर इन सैन फ्रांसिस्को राइट नाउ। Run me through what life in Pakistan and working and educating yourself in Pakistan was like. Yeah. I was born and raised in Multan. Or I come from a family of engineers and doctors, right? I think abhi is recording se pehle bhi we were just chatting about it. Ki I come from a family of very highly educated people. I think I don't know of anybody both on my paternal side, right? जिसके पास multiple degrees now, like 3 PhD की degrees now. मेरे दादा परदादा नाना परनाना, right? Everybody was into education. So I think my own father is a doctor. In my personal family, like a lot of doctors there, but my Tayabu, वो उनकी फैमिली जो है वो सारे इंजीनियर से भरी हुई है. I always used to tell people there were like 13 electrical engineer from UT Lahore before me in my extended family. तो मुझे तो electrical engineering ही करनी थी. Hmm. जितना भी मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में, everybody was like UT जाना है, electrical engineering करनी है, बाकी सब भूल जाओ, right? I think it would be really helpful for people who are listening if I share a little bit about where I am today, what I'm doing now, so they can understand why they should be listening to this podcast, right? So I am Ahmed Awais. I am founder and CEO of Command Code. I have had an amazing career as an open source engineer. I've written a lot of open source software. In Command Code right now, as of today, I know it's like surreal to say this out loud, but we are the most used coding agent for open source models in the world right now. Elon Musk has posted about us. Chief AI scientist of Meta has posted about us. In their public leaderboards like Open Router, Versal Gateway, jahan pe we are ranking number 1 right now. We are doing anywhere from 20 to 30 trillion tokens on open models. You know how there is Claude और उनका Claude model है जो कि private model है. उसी तरीके से Chat GPT है और Codex है उनका GPT model है. But there are so many open source models, right? So these two are really big, but there are open source models like Kimi, DeepSeek, GLM. उनकी usage में most of the developers or usage-wise are using them through a command code, which makes us
like it's a humbling moment for us, right? It's doing really well. Command Code is a Silicon Valley company. हमने Silicon Valley के amazing investors से 5 million raise किया हुआ है. We have grown into 100 million plus company already, and inshallah we are building like a 100 billion plus company in this coding agent space. We have amazing amount of research in this. A couple months ago, one of my research on fixing DeepSeek tool calling and building a harness around tool call repairs went absolutely viral. Almost 2 million developers saw that, and I think I have seen dozens of different things come out of that research. As far as our investors are involved, amazing crowd है जो हमें support कर रहा है. Founder of GitHub who invested in our pre-seed, he doubled down. Or PWV, Tom Preston Werner, founder of GitHub, who created GitHub and founded GitHub. He is our lead investor. And then there are a group of amazing people like CFO of Apple, CEO of Replit, Amjad Masad, a really good friend, and CEO of Supabase, recent Socket, CTO of Cloudflare, Snick, Tesla founder जो है Gaipa Journey, and a couple of amazing folks like Theo Brownie, जो काफी famous YouTuber है, is also an investor, and a bunch of amazing people. You can just go to commandcode.ai/about and read more about what we are doing. We are also going open source, which is going to be super exciting. Matt Mullenberg, founder of WordPress, has also just invested when he learned probably कि हम open source जा रहे हैं, and he also deeply appreciates what we are building. So as you can imagine, this didn't happen, overnight. There's, a bunch of history and story behind all of this. My background is mostly in open source, right? मैं Google Developers Advisory Board पे हूँ. I'm part of Linux Foundation Business Governing Board, Open API Initiative के BGB board पे रहा हूँ मैं. SF का जो AI ML का Dev Networks है उसके advisory board में हूँ. But beyond this, I think if you go to, take a look at my GitHub profile, you will find that I have open source more than 300, software packages, जो 100 से 200 million times download होते हैं every year. Almost every big company and a lot of, developer community depends on the software that I have written. I take a lot of pride in it. Like, for example, अगर आप लोग React यूज करते हो, almost 12 years ago, I got Facebook to open source React and GraphQL. Completely changed my career trajectory, right? If you are using WordPress, I contributed a lot to the WordPress core software. MCP spec का author हूँ, वहाँ पे उसकी spec में भी काफ़ी मैंने काम किया था. And a bunch of other things, Firefox के अंदर, Chrome के अंदर, Node.js की CLI core के अंदर बहुत ज़्यादा मेरी contribution है. I'm an automation guy. I love building automation tools. Shades of Purple code theme अगर आपने देखी है, about 7 million developers use करते हैं. I authored that theme. It is one of the top 5 VS Code theme जो 30 plus software पे available है. So at the end of the day, I am this super technical engineer, right? I love being an engineer. I'm a builder. I build things. Almost 27 years say I'm writing code here and there. और मैं ब्लॉग भी काफ़ी किया है. ऑलमोस्ट 200,000 फॉलोअर्स हैं मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे. छोटा सा यूट्यूब अकाउंट भी है, बट आई थिंक मैं कोई 16-17 ईयर से उस पर डिफरेंट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ. रिसेंटली किक स्टार्टेड लाइव स्ट्रीमिंग अगेन. But this is who I am. Like, Alhamdulillah, I have been recognized as a GitHub star with a GitHub Stars Gold award for the last 6 years. Google Developer Expert, as well as Microsoft MVP. And all of this is just a side product of what I have done. I've contributed to the NASA Mars Ingenuity helicopter mission. I got to sit down with Satya Nadella, amazing supporter of open source. And all of the work that I've done have combined and has like all of that has enabled me to be able to build and go compete in the top, software at the very top of the software industry, जहाँ पर इस वक्त AI की एक रेस चल रही है. I think engineering has been completely disrupted by AI. Corona CLI का tool मैंने लिखा था, it went viral, and I got access to GPT-3, and a bunch of different things got started in 2020 very early on. So all of this combined
in Hmm. has gotten me here. Education wise, अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो I think a quick summary is कि UT लाहौर से मैंने BBS किया हुआ है electrical engineering. I kind of dropped out from Harvard Business School. I ended up joining. I was doing MS MBA program from there, but I ended up cracking a vice president of engineering and developer Hmm. relations job at this company called Rapid API, which within 4.5 years we ended up growing it to $1 billion unicorn. I was one of the 10 key execs there, and Nokia Hmm. acquired us a couple of years ago. So I've had this amazing career building a lot of software at this global scale. And now I'm back at it with a phenomenal team, phenomenal world class investors, and building what almost everybody in engineering is using, a coding agent जो AI different AI models को use करके at 10 or 100 times cheaper cost पर आपको वही competitive results देता है compared to Claude Code या Codex, right? So really excited to continue discussing my background and how we got here or whatnot in this podcast. Hmm. So I think open source में ना, the reason why I find this space very very interesting is I think open source is now going away from the sort of hermit, nerdy, very very small communities of people. वो Mr. Robot वाले जो नहीं एक persona आपके दिमाग में आता, and really mainstreaming now, particularly with the changes of AI जो अब मैं देख रहा हूँ, तो अब वो नज़र आपको आ रहा है कि as software is now being democratized on a monumental scale, and there's a deflation of the cost of producing anything, right? um, एक तो ज़ाहिर है हायर लेवल के ऊपर चाइना और यूएस की जंग के दरमियान में आपको नज़र आ रहा है कि यूएस इज द नेस्ले एंड चाइना इज द वन हैंडिंग आउट द फ्री बॉटल्स, एंड देयरफॉर वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऑन अ मॉन्यूमेंटल स्केल आपको नज़र आना शुरू हो गया कि अच्छा यार, मुफ्त में भी अब आपको एआई का एक्सेस मिल सकता है. Imagine um, China being doing open source, the closed yeah, source com, right? एब्सोल्युटली राइट. इट्स कंप्लीटली फ्लिप द स्क्रिप्ट Yep. कंप्लीटली, एंड देन उसके बाद फिर चूंकि कल ही मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वेयर ही वाज लाइक यू नो इफ एवरी एनीथिंग दैट यू क्रिएट, आप एआई से इस वक्त जो 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 स्मॉल टू मीडियम लेवल के ऊपर लोग बना रहे हैं ना, जी मैंने वीकेंड लगाया और मैंने ये ज़बरदस्त चीज़ बना ली, द मोमेंट यू आर एबल टू पुट इट आउट देयर तो 1,000 लोग सेम चीज़ कर लेते हैं. सो इफेक्टिवली द वैल्यू ऑफ लॉकिंग थिंग्स इन इज़ नॉट दैट मच एनी मोर एज वेल. देयरफॉर इंक्रीजिंगली अब आपको रेगुलर नॉन टेक लोग जो हैं वो जाके ओपन सोर्स करते नजर आ रहे हैं कि यार ये देखो ये मैंने बनाया है. आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड क्लेम कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे पैसे दो, बल्कि मैंने उसका सारा कोड बेस उठा के गिटहब पे रखा हुआ है, जाओ मुझे स्टार्स दे दो. एंड सो देयर इज नाउ एन इकोनॉमी अराउंड ओपन सोर्स दैट्स बीइंग बिल्ट आउट. एंड उसमें वो यही है कि यू नो फ्री टू ट्राई पे टू बाय वाली चीज़ के अंदर एक सर्टन, अब वो इंक्रीजिंगली दिस इज बिकम नॉट अ नीश बट रादर द मॉडल ऑफ कि हर चीज़ आप मुफ्त में दे दो और अगर आपको उसकी एक्सपर्टीज चाहिए तो मेरे पास आ जाना वाला हिसाब है, राइट? Yep. That's where actually I think there is a lot of value for average even Pakistani students this and that to understand, because वो पुराना मॉडल जो था ना कि जिसमें आप जो है बस अपना काम करते थे, पैसे उसके लेते थे, वो मॉडल शायद अब शिफ्ट हो रहा है. And so that's why the conversation about open source is extremely important. It's not a niche anymore. It's something, it's very mainstream. First of all, I'd love to understand, um, how do you see the future of open source? And I tie this down to that then what you're doing now with command code and Langbase before that as well. What got into your recent startups effectively? मुझे ज़्यादा नहीं पता कि आगे क्या होगा, as you can imagine, right? I think software in itself बहुत ज़्यादा change हो रहा है. But I think anybody who's smart enough can connect the dots, because that is what I do all the time, right? I've trained my gut to learn कि ये दुनिया कहाँ जा रही है. That is my entire professional career is this. ठीक है? I've gone from this confused kid to telling Google, like right now I am on Google Developers Advisory Board, Node.js की foundation की technical steering committee में रहा हूँ, Linux का board member हूँ, Linux Foundation, one of the biggest open source foundation. In fact, I think 2019 की बात है when I was again deeply confused कि ये कहाँ जा रहा हूँ मैं. ठीक है, Google was trying to hire me, लेकिन मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा था, वीज़ों का मेस चल रहा था. ठीक है, that was the around about a decade ago. Like a bunch of companies
वर ट्राइंग कि मैं परमानेंटली यूएस आ जाऊँ, ठीक है, आई वुड ऑलवेज गो इन कम बैक, राइट। और वीज़ा बहुत खप खाने वाला काम है फॉर समबडी लाइक मी, इट्स जस्ट अ जाइंट बिग मेस, राइट। और मुझे एडब्ल्यूएस की भी जॉब ऑफर आ गई थी, नेटफ्लिक्स और एयरबीएनबी के साथ भी काम कर लिया था, लाइक अब यहाँ तक मैंने कर लिया है, मैं यहाँ से प्रमोट होके किसी सीरियस पोजीशन पे नहीं जा पा रहा, ठीक है, जहाँ पे मैं एक्चुअली लोगों को चेंज कर सकूँ। लाइक आई वर्क एज अ प्रिंसिपल इंजीनियर, 50 लोग थे गूगल के अंदर, उनको बहुत हेल्प की, बट सारा क्रेडिट उनको मिल गया। And I did not enjoy that. You have to realize I'm the guy who wanted to invent things, name them. I can't, sorry for my, I can't fucking name them, right? right? तो एक मूवी आती है उसी वक्त पे, अपना टाइम आएगा, मैं वो देखता हूँ, मैं उसको डीपली कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, और मैं कहता हूँ, ओ शिट, दिस इज मी, आई एम द ओपन सोर्स गाय, राइट। सो ये करना है, राइट। इट हेल्प्स मी अ लॉट मेंटली सॉर्ट आउट अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स. And then I realized I don't need to be generationally wealthy or something to start investing. I know a lot about good companies. I could have invested in Cloudflare. मैं उनको 2010 से जानता हूँ. Stripe इनको 2011-12 से जानता हूँ. DigitalOcean का कि जब सिर्फ 6 एम्प्लॉयज़ थे, मैं उनको उनके लिए मीटअप्स करता था पाकिस्तान में बड़े-बड़े. ठीक है, इतनी बड़ी हो गई. DigitalOcean एक्चुअली एक्वायर्ड आई थिंक $360 मिलियन का हमारा क्लाउडलेस स्टार्टअप, बड़ा मजे का. ठीक है. And I realized, yeah, you could, if with right access in just a small amount of checks, you can just write, $5 to $25,000 checks, or even smaller, in good companies, and maybe in future that translates to three things. एक, there are multiple ways to build. वन इज आप खुद बिल्ड करो सब कुछ, दूसरा है और एक कंपनी बना लो, दूसरा है आप दूसरों को हेल्प करो बिल्ड करने में बाय गिविंग द मनी, योर रिसोर्सेज, योर हेल्प, योर इन्वेस्टर्स, व्हाटएवर. ठीक है. और थर्ड है आप एक्चुअल वीसी बन जाओ, विच आई वाज लाइक, मेरा जितना नॉलेज बन गया है, जितना एक्सेस है, आई थिंक आई शुड गो इनटू दिस. सो आई हैड जस्ट स्टार्टेड writing very very small checks. I was considering writing a check in a company जो GPT-2 यूज कर रही थी. I thought they had built GPT-2. right? तो मैंने उसके बारे में ज़रा बात बूत की, इधर कम्युनिटी को पता चला, तो ग्रेग रीचेज आउट, ग्रेग ब्रोकमैन, कि GPT-3 का एक्सेस देते हैं आपको. 2020 की बात है ये. ठीक है. एट द सेम टाइम इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ें बिल्ड कर रहे हो. ठीक है. आजकल फीफा चल रहा है ना, गोल्स एट शॉट एट द गोल्स, राइट, हाउ मेनी यू आर टेकिंग, राइट. अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ब्राउन हूँ, वीज़ों की मेस में फंसा हुआ हूँ. 2020 के अंदर मेरे 44 कॉन्फ्रेंसेस पे ट्रैवल था, और ये बंच ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है. और वीज़ों ने मेरी मत मारी हुई थी. मैंने कहा चलो एक साल में इतना ट्रैवल करता हूँ कि मेरी सारी जो ऑडियंस बनी है वहाँ से बन जाए. ठीक है, एक साल. और 2020 में कोविड हो जाता है. ठीक है. और मैं सर पकड़ के बैठा हूँ. मैंने कहा यार सारा मैंने काम किया, लास्ट 6 months ऑफ माई वर्क गॉन टू ट्रैश. तो मैं कोविड को, आई कैन अश्योर यू, WHO से भी ज़्यादा ट्रैक कर रहा था मैं कोविड को, बिफोर WHO थॉट कि ये बड़ी चीज़ है. मैंने एक CLI बनाई हुई थी, कोरोना CLI, जिसे मैं ट्रैक कर रहा था कि ये वाकई बड़ी चीज़ है, शुड आई स्टॉप, मैं पहले ही रिफंड मांग लूँ बिफोर शिट हिट्स द फैन. ठीक है. और वो मैंने ओपन सोर्स की हुई थी, राइट. बे एरिया के अंदर जब मेयर ने कहा कि यार बंद कर दो सब कुछ, और ट्विटर को और गूगल को कहा आज शाम को टूल चाहिए जो ट्रैक कर रहा हो कोविड, they had nothing. Because I was so deeply involved with them, they put my tool for tracking for maybe a week. I got billions of queries on that tool. They paid the bill, right? Or for a very small amount of time, I was the, talk of the town. Anybody who is listening to me in San Francisco would understand, ये gossip girl town है. जरा सा कुछ हो जाए, everybody say, देखा है, क्लूली वालों को देखा है, वो क्या कर रहे हैं, right? फाउंडर ने वीडियो बना दी अंडरवेयर के अंदर, बट राइट. तो ये गॉसिप टाउन है. एवरीबडी वाज यूजिंग कोरोना CLI एट दैट टाइम. आई कॉल्ड माय मदर फ्रॉम सैन होजे हॉस्पिटल. LEDs के ऊपर CLI चल रही है मेरी. मैंने कहा आई हैव मेड इट. हॉस्पिटल यहाँ के मेरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आई न्यू दे वुड अंडरस्टैंड, दे आर डॉक्टर्स, राइट. आई गॉट a message from Sam Altman. I have no idea who that guy is. This is 2020. I don't know who Sam Altman is, right? और वो कहता है मैं कोरोना CLI यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा टूल है, वी शुड टॉक. इग्नोर कर दिया. ग्रेग ब्रोकमैन का मैसेज आता है, ब्रो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू. और यू ग्रेग ब्रोकमैन, इंजीनियर, CTO, Stripe,
बड़ा बंदा लगता है, ठीक है भी अच्छा। जंप ऑन अ कॉल, वो कहते हैं हम हैं ओपन एआई, हम हैं, हमने बनाया GPT-2। मैंने कहा मैं तो समझता हूँ वो टैब 9 वालों ने बनाया। कहते नहीं नहीं हमने बनाया है, हमने ओपन सोर्स किया हुआ है ये, क्या बात कर रहे हो। उन्होंने कहा यार आप मेरी ना अब तक ये ब्रांडिंग बन चुकी हुई है कि दिस इज द गाय हु अंडरस्टैंड्स डेवलपर्स, राइट। और उनको कैसे कोई डेवलपर ऑडियंस को चीज़ सेल करनी है, राइट। सेलिंग टू डेवलपर्स इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट, राइट। आप किसी डेवलपर के पास जाके कहो सेल्स की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, वो चिढ़ जाते हैं। दैट द सेम रीजंस व्हाई मैंने मार्केटिंग की स्पेस छोड़ी थी, बिकेम लाइक दिस दैट थिंग, राइट। उन्होंने कहा ये देखो यूज़ करो, इसकी कोई डेमो शेमो बनाओ ताकि दुनिया को एक छोटी सी वर्कशॉप करा देते हैं, लोगों को पता तो चले कि ये कैसे यूज़ होना है। एंड आई कनेक्टेड इट विद फिग्मा। फिग्मा वॉज, मैं फोटोशॉप की वर्कशॉप कराता था, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में इतना मेस होता था, हर किसी के पास राइट कंप्यूटर होना चाहिए, इंस्टॉल करो, आधा घंटा तो इसी में चला जाता था वर्कशॉप में। फोटोशॉप इंस्टॉल हो रहा है भाई, क्रैक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 2012 में फिग्मा आता है, कहता है वेब इज गुड इनफ, आई विल क्रिएट फोटोशॉप। बेसिकली ऑनलाइन वेब पे आप जाओगे figma.com एंड यू विल जस्ट एक्सेस इट। आई फेल्ट लाइक ओपन एआई वाज ट्राइंग टू डू दैट, एंड दिस इज व्हाट माय पिच टू देम वाज। आई थिंक आप डेमोक्रेटाइज कर रहे हो एआई को। मैं एआई में इसलिए कभी इन्वॉल्व नहीं होता था, बहुत हाई क्वालिटी मशीन लो, ये लो, जीपीयूज लो, पता नहीं क्या क्या एक्सपेंसिव हार्डवेयर लो, फिर आपका जाके हल्का फुल्का कुछ चलेगा। आई एम द काइंड ऑफ गाय जो CSS में जरा सी चीज चेंज करके कहता है मुझे लाइव फीडबैक दो कि ये चेंज आया कि नहीं। आई कांट वेट, दिस इज हु आई एम, वेब डेवलपर, राइट। तो आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज आपने एआई को ऑनलाइन डाल दिया वेब पे, नाउ एनीबडी कैन जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट एंड गेट इट टू डू शिट। सो मैंने एक छोटा सा वो बनाया फीडबैक फॉर्म और वर्कशॉप कराई बे एरिया में ओपन एआई के थ्रू, जिसमें लोग आए। मैंने कहा अपना यहाँ पे पहले आप फीडबैक लिखें कि आप मीटअप पे आने में कैसा रहा। 2-3 स्पीकर्स ने टॉक दी, लास्ट वन वाज मी। अब उसमें शुगल ये था, ऑब्वियसली बंच ऑफ इट वाज स्क्रिप्टेड, एनी गुड बिल्डर वुड नो दैट, राइट। तो द गाय जिसका हमने स्क्रीन शेयर की, ही इज राइटिंग, और दिस वाज एन एब्सोल्युटली शिटी, होली शिट, रियली गुड मीटअप। अब वो अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन इमोजी जो है वो फॉन्ट चेंज हो रहा है जैसे जैसे वो लिख रहा है, ठीक है। ही स्टाइलिंग दिस वाज ऑफ, वो इमोजी जो है वो आ रहा है जिसके मुंह पे वो लाइफ चेंज हो रहा है, एंड पीपल लाइक व्हाट डिड यू डू, हाउ। एंड मैंने उनको दिखाया कि देखो ये सिर्फ 7 लाइन्स ऑफ कोड है, मैं लाइव उसका फीड फेंक रहा हूँ ओपन एआई की एपीआई पे, एंड इट इज चेंजिंग द इमोजी, इट जस्ट अंडरस्टैंड्स, आई डोंट नीड टू ट्रेन इट, ठीक है। उस पे लोग पागल हो गए और ये क्या, हर किस्म की चीज़ें उससे कर रहे हैं, और लाइक इट वेंट रियली ग्रेट। ओपन एआई ने कहा आप हमें ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आती आप लोग क्या कर रहे हो, और उन्होंने बहुत कहा कि आप स्टॉक ले लो। अब दिस इज अगेन, दिस इज मी एट द टाइम जब मुझे समझ आ चुकी है आई शुड बी इन्वेस्टिंग। 2019 में आई स्टार्टेड एंजल इन्वेस्टिंग, और वो कह रहे हैं कि हम ना एक नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स कंपनी है। मैंने कहा मैं एक नॉन प्रॉफिट ओपन सोर्स कंपनी का स्टॉक लेके क्या करूंगा, ठीक है। देयर सो मेनी लेयर्स टू दिस गेम जो पाकिस्तानी ऑडियंस को नहीं पता, और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि जिस चीज़ में वैल्यू है ना, उसने आपको यू विल रीप द बेनिफिट ऑफ दिस नो मैटर हाउ, और व्हेन यू जस्ट डोंट नो हाउ, एंड यू डोंट नीड टू नो हाउ, ठीक है। और ये सारी ओवर द इयर्स जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, मैं मेरा अपना मेरा एक अगर इफ एनीथिंग दैट यू टेक बैक फ्रॉम दिस एंटायर थिंग इज रिस्क में रिस्क है, राइट। दिस इज व्हाट माय फेथ इज। रैंडम रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लो, उसमें रिस्क है। और बहुत सारी आपको एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, आई प्रे 5 times a day, alhamdulillah, in there will be so many things that you can find hadith और कुरान जिसमें बेसिकली अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या दिखते नहीं कैसे दिन और रात पंक्चुअली लगे हुए हैं काम करने में, और ये एक कितना काम करके कैलकुलेटेड रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है ना। तो मैंने उस वक्त नहीं लिया। मैंने कहा आप बस मुझे पे कर दें सम 20K और वट नॉट। आई विश मेरे पास एक बॉट है जो मुझे वीकली मंथली रिमाइंड कराता है कि इतना हो गया होता आपका स्टॉक अगर आपने 20K स्टॉक ले लिया, जस्ट ऐसी कोई 2-2.5 मिलियन $2-2.5 राइट। एनी 3 years later, I referred a guy into that open AI company, और GPT-3 का ऊपर काफ़ी कुछ किया। I ended up building this thing called CLAI. I'm a CLI guy. CLI के अंदर AI डाल दी, इट इज स्टिल कॉल्ड CLAI, राइट। और लोगों के साथ शेयर कर दी। इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द अर्लीस्ट कोडिंग एजेंट
on the space. I would admit कि मुझे खुद नहीं पता था कि it is a coding agent. ठीक है. और वो मैं काफ़ी लोगों से बड़ा डीपली कनेक्टेड हूँ. फाउंडर ऑफ गिटहब, ऑब्वियसली आपको सारी स्टोरी अब पता है कि क्यों. ठीक है. गिटहब जब सेल हुई, माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नदेला सैट डाउन विद मी जब मैंने नासा की कंट्रीब्यूशन की, वेल कनेक्टेड विद दैट गाय. माइक्रोसॉफ्ट में before Satya Nadella, everybody was against open source. Satya Nadella is the open source guy. He came in, he's like, I think hit reload, उसने book लिखी. Amazing dude, amazing, unbelievable. He was like, और वो आया, मेंटेनेंस का छोटा सा 8 लोगों का ग्रुप था. उसने कहा हम माइक्रोसॉफ्ट गिटहब को एक्वायर करना चाहता है, क्या हम करें कि हमारा पीआर खराब ना हो. हमने कहा मेरी एडवाइस सिर्फ ये थी, आपकी सबसे ज़्यादा ओपन सोर्स रिपोजिटरीज होनी चाहिए बिफोर यू एक्वायर. अदरवाइज दैट इज यू आर जस्ट गोना टर्न इट इनटू शिट. तो माइक्रोसॉफ्ट ने टाइपसेट ओपन सोर्स किया, VS कोड ओपन सोर्स किया, बहुत कुछ ओपन सोर्स करके became the highest, most open source projects company in all the top 5 clouds. And then they announced GitHub हमने acquire कर ली है. तो I ended up being, around 2020, I ended up being part of a very small group जिनका GitHub के साथ NDA था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ NDA था बिकॉज ऑफ दैट एक्विजिशन, और OpenAI के साथ NDA था बिकॉज ऑफ GPT-3 थिंग. So when they formed together and started building GitHub Copilot, they thought, who can we ask to be here without a lot of legal mess? I was one of those people. तो GitHub Copilot बनना शुरू हुआ, मेरे पास शुरू दिन से एक्सेस था, मैं खुद भी बना रहा था, तो मैंने बड़ी डीपली ये स्पेस देखी है कि क्या हो रहा है. ठीक है. और मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई. फाउंडर ऑफ गिटहब ने कहा यू शुड बिल्ड अ कंपनी. मैं उसको 3 साल नो करता रहा. मैंने कहा नहीं, फाउंडर नहीं बनना मैंने, आई डोंट नो व्हाट दिस इज. ठीक है. और इसी असना में मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया था बहुत थोड़े टाइम के लिए. गूगल एक्चुअली वांटेड कि क्लाउड 101 का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ वहाँ पर. मैं साथ MSMBA की डिग्री भी ले लूँ और साथ वहाँ के जो हार्वर्ड के MBA बाहर निकलें, they would know how Google Cloud works, so they would sell Google Cloud to the companies they will get hired in, right? But COVID के दौरान it made no sense at all कि आप $200,000 down the drain डालो और you do Harvard education from your own room, right? I wouldn't even say कि it's a dropout, like पहले semester में ही छोड़ दिया मैंने. But I was able to get the value right away. I became VP of engineering at a big Silicon Valley startup. I think हमने कोई 20 million raise किया हुआ था before I joined. Series A कर रहे थे. Within 4 years, we transformed. I was one of the execs there, Rapid API. We transformed into a $1 billion unicorn. I learned so much there. Within these 3 years, किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास GPT-3 का access था. 2022 के end पे GPT-3 becomes public. Chat GPT आ जाता है. And then a bunch of us, including me, realized कि oh shit, this was it, right? उस टाइम भी मुझे ऑफर दी जाती है कि इफ़ यू वांट टू बाय आवर स्टॉक नाउ यू कैन लाइक डू, बट हम 10 बिलियन के हो, 20 बिलियन के हो गए. मैंने कहा अब और कितने बड़े होंगे ये. ठीक है. सो आई वाज अगेन रॉन्ग. And then I also meet a bunch of amazing people who had just left OpenAI and they were building Anthropic. And मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं. Claude के founders और ये. So like you miss a lot of shots, and that's fine, right? इन अराउंड दिस टाइम मैंने जो एक छोटा सा ओपन सोर्स किया था CLAI, वो काफ़ी चलने लग गया. A bunch of people convinced me कि you should be a founder. So जब Nokia bought our company, Rapid API, I had a job offer to join OpenAI exec level पर, not very high, but like VP level पे, which is very high for somebody of my age in background. और build your own company. So I was like, okay, ठीक है, अगर fair shot देना है तो भी दे देते हैं. Founder of GitHub is a billionaire. He is an absolute genius. और he was like, मैं आपको, I will foot the bill for you. ये लो, here's $1 million. And you don't even have to return the money. See what you can do in 6 months. In 6 months, we were able to crack a bunch of amazing things. My team was able to invent a really nice memory engine. हमने सोचा कि शायद एजेंट्स होंगे हर जगह. वी शुड बिल्ड समथिंग लाइक हरमेज या ओपन क्लॉ. हमने वो बिल्ड किया 2023 में. नोबडी गेव अ शिट अबाउट इट. इट वाज टू अर्ली. हमने ओपन सोर्स भी नहीं किया. बहुत सारी मिस्टेक्स की. हम 2.5-3 साल से लगे हुए हैं उस पर.
और we got around 2 billion agents running a month, तकरीबन 900 terabytes of vector data per month. काफ़ी अच्छे stats हैं. I don't think they are really good. Eventually, end of last year, I kind of gave up. I'm like, यार ये क्या हो रहा है? ये अभी जो आपने बात की ना, now anybody can write software, right? You can think of it like a bad thing or a good thing, but thinking of it as a good thing is very hard for engineers, Hmm. right? That's the struggle we have right now. कि अब engineering क्या है? So Hmm. now, if you look back to my background, nothing about my background is conventional. मैं अपनी डिग्रीज की वजह से यहाँ नहीं पहुँचा हुआ, मैं अपने बैकग्राउंड स्किन कलर की वजह से यहाँ नहीं पहुँचा हुआ, ठीक है? मैं मोस्टली वो करता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि वैलिडेटेड है, डीपली टेक्निकल है, एंड विल वर्क आउट. सो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि क्या हो रहा है, हर किसी की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, बट मुझे लगता है फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग इज़ गॉन. Engineering is potentially a solved problem now, or it is all about taste. In Hmm. हमेशा से कॉपी होता है. Chinese are way ahead of anybody in copying everybody. That is what they do, right? लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ भी कॉपी करना अब डीपली ईजी हो गया है, Hmm. और इस चीज़ को लोग बहुत डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, एनीथिंग. ठीक है, आई विल जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट टू माई AI and it will just do it because I know that you have done it, and I can just feed it images, videos, or prompts. I know it will also be able to create it, right? So a lot of people, including me, for a while thought कि यार we are done for. ठीक है, these are the last few years. अभी भी मुझे लगता यही है कि near future there will be like 10 companies left जो सारा कुछ own करती होंगी, और we will all be working for them or in one way or the other. Right? OpenAI, Anthropic, Google, they're too big, right? But I think there is value in taste. As a Muslim, as a person with faith, I know कि ये सॉफ्टवेयर कभी भी हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता. ये मेरा फेथ है. ठीक है, this is my step ahead of people who do not have faith. Like, this is how I think about it. Like, यार मुझे अगर पता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहनी है, so I can bet on that idea, right? And my first bet in that idea was taste. Taste is the opposite of slop. ठीक है, आप, it's like किसी के अंदर जोक्स क्रैक करने का टेस्ट नहीं है, नो मैटर व्हाट ही डज. यू कांट रियली एक्सप्लेन कि ये क्या तुम गलत कर रहे हो, बट इट इज अ टेस्ट थिंग. ठीक है, बट अगर किसी के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है जोक्स क्रैक करने का, टेस्ट है उसके अंदर, द मोमेंट ही टेल्स दैट जोक, एनीबडी कैन नाउ टेल दैट जोक, राइट? सो अच्छे जोक को कॉपी करना बहुत आसान है. दैट इज द वर्ल्ड वी लिव इन राइट नाउ, सॉफ्टवेयर. आपके, what you have to do is you have to build strong taste of doing good things. Those good things will be copied right away, but you will be ahead of everybody just because you have taste, right? So I invented a model literally called Taste One, जो आपको काम करते हुए देखता है और आपसे लर्न करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं. बेसिकली सेल्फ कंटिन्यूस लर्निंग लूप है. ट्रांसफॉर्मर मॉडल जिस पे जीपीटी या क्लाउड बने हुए हैं उस पर नहीं बनाया हुआ, न्यूरो सिम्बॉलिक मॉडल है. बहुत डीपली टेक्निकल डिबेट है, उस साइड पे मैं नहीं जाना चाहता. इट लास्ट ईयर हमने बनाया, मैंने कहा मैं ये करूँगा ताकि मुझे क्रेडिट मिले और सब कुछ, और लाइक यू नो हमारा भी कुछ चले. ठीक है, इट डिडंट वर्क आउट वेल क्योंकि एंड ऑफ लास्ट ईयर डेवलपर्स 20% कोड तो लिख रहे थे. ठीक है, अब डेवलपर्स अब बहुत कम कोड लिखते हैं, तो आप टेस्ट लर्निंग कैसे करोगे एक डेवलपर का अगर वो कोड ही बहुत कम लिख रहा है. ठीक है, तो वी फ्लिप द स्क्रिप्ट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, इनफैक्ट 72 डेज अगो. हमने AI मॉडल्स का टेस्ट लर्न करना शुरू कर दिया है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल. वी नाउ नो कौन से मॉडल ने क्या हरकतें करनी हैं. ठीक है, और 72 days ago we pivoted from Langbase to Command Code. Command Code is a coding agent just like many around. आपने देखा होगा Claude Code,
या कर्सर या इस तरह के, वी आर competing with all of those big coding agents. हमारे अंदर डिफरेंट ये है कि एक तो ऑब्वियसली माई इन्वेस्टर्स ऑल्सो टेल मी दिस. We've raised $5 million so far, which is public. We're raising a bunch more. We are one of the top 3 coding agents right now. ओपन राउटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम नहीं हैं, सिर्फ एक मॉडल का लोड हमने उस पर डाला. वी आर इन टॉप 3. टॉप पे आई थिंक हरमेज है, फिर क्लाउड कोड है, फिर हम है. वर्सल के ऊपर भी हमने काफ़ी ट्रैफिक डाली है, उधर हम टॉप 2 पे हैं. वी आर नाउ प्रोसेसिंग ओवर 200 बिलियन टोकन्स अ डे. This is just for 70 days old company, right? So now you can probably understand when I say that 2 billion agents monthly running are not a big deal. We are doing 200 billion per day now. नियर फ्यूचर हमें कैपेसिटी के बहुत शदीद इश्यूज हैं. हम मार्केटिंग नहीं करते ताकि कम लोग आए क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी के बहुत इश्यूज हैं. जीपीयूज आर अ वेरी रेयर एंटिटी. आई थिंक इन नियर फ्यूचर विल बी डूइंग ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन टोकन्स अ डे. दिस इज एक्सट्रीमली मैसिव. ठीक है, दिस इज द स्केल ऑफ कर्सर. So just to get a sense of what this is. Hmm. This is basically a harness जिसके पीछे आप ओपन सोर्स या कोई भी आप जो भी आपके लेट्स से ओपन राउटर के जो मॉडल्स हैं वो आपने कोई कनेक्ट कर दिया और जो 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 फ्रंट कोडिंग का काम है वो सो व्हाट क्लाउड कोड है जो उसका डेस्कटॉप ऐप है या जो एजेंट्स हैं फ्रंट के ऊपर उसके पीछे आप लेट्स से आपने क्लाउड का यू नो ओपस 4.8 लगाया, फेबर लगाया, व्हाटएवर, वो आप चेंज करके आप टेक्निकली स्पीकिंग आप यू नो ओपन एआई के भी लगा सकते हैं. तो वो जो फ्रंट है बेसिकली इज दैट व्हाट कमांड कोड इज लाइक आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ यू डोंट हैव योर ओन मॉडल्स राइट, यू आर बेसिकली कनेक्टिंग टू DeepSeek or XYZ. You're providing the agentic front for it. We do if I have our own understand this models. We do have Acha. our own models. Let me put it this way. First of all, I'll be the first one to admit we have no idea what we are doing. Hmm. Nobody has an idea what they are doing. Anthropic, OpenAI, किसी को कुछ नहीं पता. Everybody is learning as they go क्योंकि ये space नई है और Hmm. पुरानी space जो software engineering थी वो ख़त्म हो गई है. If you are working like an old software engineer today, अगर आप एक वक्त में एक काम कर रहे हो, you are not gonna make it. It's that simple as a software engineer. ठीक है? That doesn't mean कि we know how to work. Right? That doesn't mean कि it is easy to work with. मैं 5 parallel agents से ज़्यादा काम नहीं कर सकता. Human limit है मेरी. कुछ लोग कर सकते हैं. ठीक है? We don't know what we are doing. But there is one key idea here. I know a lot about this space, and I partnered up with an amazing team who know a lot about this space. So if shots at the goal, right? We're gonna take shots at the goal. The first shot we took was taste. The second shot was nobody used to give a shit about open models. ठीक है? There's Claude Code. Open models नहीं है. GPT already open नहीं है अब. ठीक है ना? दोनों ओपन मॉडल्स का कुछ नहीं कर रहे. ओपन मॉडल्स सिर्फ चाइना में नहीं है, यूएस में भी हैं. बहुत जगहों पे ओपन मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. दे आर बैड. वाई आर दे बैड? राइट, मैं आई एम दी अगेन, मेरा पर्सोना ओपन सोर्स का है, तो आई लीन इनटू इट. एंड डीप सीक ने मॉडल लॉन्च किया और डीप सीक की काफ़ी वो ऑडियंस आपको याद होगा, चैट जीपीटी का पहला कॉम्पिटिटर जो चाइना से आया था, ओपन सोर्स भी था, उसकी बड़ी वो एक वो है. आई वर्कड ऑन इट और आई वॉज एबल टू क्रैक how I was able to make DeepSeek perform better than Opus. This is public, by the way. You can go to my Twitter, go to my highlights tab. Public है, 2 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं. मेरी सारी रिसर्च भी पब्लिक है. मुझे पता था लोगों ने कॉपी करनी है, मैंने पहले ही दे दिया. मैंने कहा ये लो यार, ऐसे कर लो. ठीक है, लिटरली मेरी ट्वीट को उठा के प्रॉम्प्ट करके आप किसी भी हार्नेस में लगा दो, इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर ओपन मॉडल्स. ओपन मॉडल्स आर 10 to 100 times cheaper. Actually, AI is cheaper. लाइक एंथ्रोपिक का जो डारियो है CEO, ही सेज कि अगर हम अपने मॉडल की कंपनी अलग कर दें, दैट कंपनी इज प्रॉफिटेबल. ठीक है, लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं, सारा पैसा उसमें जा रहा है. ठीक है, तो मॉडल की इन्फ्रेंस इज एक्चुअली प्रॉफिटेबल. दे आर मेकिंग सो मच मनी ऑन इट, राइट? दैट मीन्स वो हवा से निकाल रहे हैं प्राइसेस. ये लो यार, ये $50 पर मिलियन कर दिया. ठीक है, ठीक है. कैपेसिटी के इशूज हैं, ठीक है, लेकिन वो 3 years में खत्म हो जाएंगे कैपेसिटी के इशूज रफली. तो ओपन मॉडल्स अच्छे क्यों नहीं हैं? उनके पास बहुत सारे इश्यूज हैं. माई रिसर्च लेड टू दैट डिस्कवरी के ओपन मॉडल्स
ये जो मॉडल एंथ्रोपिक और ओपन एआई आपको देते हैं, वो लगता है ऐसे है कि आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो और वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा, बट ऐसे है नहीं। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि बेसिकली उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स लगाए हुए हैं टू रिपेयर द रिस्पॉन्स बिफोर इट गेट्स टू यू। मेक सेंस? आपने एक चीज़ भेजी, मॉडल ने कुछ प्रोड्यूस किया, एंड देन दे रिपेयर्ड दैट रिस्पॉन्स बिफोर इट गॉट टू यू। दैट रिपेयर थिंग इज व्हाट वी बिल्ट, राइट? तो हमने वो रिपेयर की चीज़ बनाई। वी आर नाउ रिपेयरिंग एटलीस्ट 1 million issues in code generation per trillion tokens. We are doing 5 trillion tokens a month, so we are roughly doing 5 million repairs. And the impact of these is huge. Imagine things like this. और ये जो मॉडल्स है ना सारे, ये they are modeled against human brain, right? They have been deeply studying कि human brain कैसे काम करता है। 1943 में एक बंदा पेपर लिखता है कि हाँ, we can बेसिकली अंडरस्टैंड कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर सारी ये साइंस स्टार्ट होती है, ठीक है? द शॉर्ट स्टोरी इज, थिंक ऑफ इट लाइक जैसे अभी आप काम कर रहे हो और आप जो काम करना चाह रहे हो, आपको 50 टाइम्स अगर कोई उस काम करने से रोके, आप चिढ़ जाओगे। तो आप जितने भी अच्छे इंसान हो आपकी काम करने की क्वालिटी लो हो जाएगी इफ आई स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट 50 टाइम्स, राइट? तो दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग विद डीप सीक। आप डीप सीक को कुछ देते हो और वो टूल कॉल करता है, वो रन करने की कोशिश करता है, और आपके गिवन फॉर्मेट स्कीमा और उसकी लर्निंग कनेक्ट नहीं हो पाती और वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप वो यूज़ करते हो क्लॉड कोड में, लेट से बहुत सारे लोग क्लॉड कोड की हार्नेस को यूज़ करते हैं फॉर ओपन सोर्स मॉडल्स। क्लॉड कोड की हार्नेस डज नॉट गिव अ शिट अबाउट ओपन मॉडल्स, दे वांट देम टू लूज, राइट? अब वहाँ पे वो क्या करते हैं, दे हाइड योर एरर्स। वो दे डोंट शो यू कि क्या एरर्स आ रहे हैं। तो 50 टाइम्स स्ट्रगल कर रहा है डीप सीक, 50 टाइम्स दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, एंड दिस हैपेंस एट स्केल, राइट? एंड यू आर नॉट, आप बैठे देख रहे हो यार बड़ा स्लो है, काम नहीं सही कर रहा, ठीक है? We fixed that, and that translated to this huge community all of a sudden, similar to that open source movement जो React में मेरे साथ हुआ था, वो हुआ, ठीक है? और सबने कहा, ओ शिट, इवन डीप सी के फाउंडर ने देखा कि ये क्या लाइक हमारे मॉडल है, वो इस वक्त पोस्ट ट्रेन कर रहे हैं हमारे डेटा के ऊपर कि भाई अच्छा ऐसे हमने फिक्स करना है। That same idea got built by thousands of engineers in different harnesses, and everybody has proven कि oh shit, this works, ठीक है? अगर आप एक टूल, आपने एक एजेंट को कहा कि यार मेरा ये वाला कोड लिख दो, अब वो एक चीज़ करने गया, 50 टाइम्स अगर वो ब्रेक होगा बीच में, उसकी सारी क्वालिटी बढ़ जाएगी। आपने उसको रोक लिया ब्रेक होने से, आपने उसको रिपेयर किया और आपने उसको दे दिया सही, तो समथिंग अमेजिंग हैपेंस। द ईजिएस्ट वे आई एक्सप्लेन दिस टू पीपल इज, थिंक ऑफ इट लाइक कि आप अपने छोटे भाई को गाड़ी चलाना सिखा रहे हो एंड दे आर अबाउट टू हिट अ ट्रक। आप उसको हिट नहीं करने दोगे, एक्सीडेंट नहीं करने दोगे, आप पहले रोकोगे, फिर उसको बताओगे कि भाई ये गलत कर रहे थे आप। दिस इज लिटरली व्हाट माय रिसर्च इज। जनरली बाकी अगर आप ओपन मॉडल यूज करते हो, क्लाउड कोड में या कोडेक्स में, व्हाट दे डू इज दे लेट यू गेट टू दैट एरर, यानी एक्सीडेंट होने देते हैं, फिर आपको फीडबैक आता है भाई ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये भेजा था और ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तब तक मॉडल की क्वालिटी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, वो बार बार एरर ले लेके थक जाता है। और ये मॉडल प्रोबेबली डिस्टिल हुए हैं बड़े मॉडल से। उनका ना ये एंड्रयू टेट टाइप पर्सनैलिटी है बहुत सारे ओपन मॉडल्स की। वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही है, बस। ओपस और जीपीटी ये नहीं करते, ठीक है? आप डीप सी को कहो कि तुम गलत हो, ये एरर मैसेज है, वो कहेगा नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। दैट इज़ द टेस्ट जो मैंने बिल्ड किया कि ओ शिट, क्योंकि उसकी पोस्ट ट्रेनिंग यूं हुई है कि आपको हम बड़ा मॉडल दे रहे हैं, ओपस इससे सीखते जाओ, जो ये कह रहा है सही है, तो उसकी अपनी वाइब ये है कि मैं जो कह रहा हूँ सही हूँ, ठीक है? ओपस ऐसे ट्रेन नहीं हुआ कि जो तुम कह रहे हो सही हो, ठीक है? जीपीटी भी ऐसे। तो ये सारे ओपन मॉडल्स में ये इशू एग्जिस्ट करता है, सब में हमने रिपेयर करना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन दे आर परफॉर्मिंग, और एक बार जब आप उसका टूल रिपेयर कर दो, समथिंग अमेजिंग हैपेंस। वो ऑल ऑफ अ सडन अपने आप को रिपेयर कर लेता है। आई हैव नो वे टू एक्सप्लेन दैट। ऑल ऑफ अ सडन उसकी क्वालिटी यूं चली जाती है ऊपर। इट ऑल ऑफ अ सडन द सेम एरर्स वो करना बंद कर देता है। मॉडल्स आर अ ब्लैक बॉक्स, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड हाउ ये डिसीजंस कैसे लेते हैं, ठीक है? लेकिन द मोमेंट आप उसको एक, उसने रिक्वेस्ट भेजी कि ये करो, ठीक है, इस फाइल का नाम रीनेम कर दो, आपने एरर भेज दिया कि भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, वो काम खराब हो जाता है। आपने, उसने रिक्वेस्ट भेजी फाइल रीनेम कर दो, आपने उसको फिक्स किया, आपने रीनेम किया, आपने कहा ये लो रीनेम कर दी, आपको ऐसे भेजना चाहिए था, एंड इट्स ऑल नेक्स्ट टाइम वो वैसे भेजेगा और इट जस्ट रिपेयर्स इटसेल्फ, आई डोंट नो हाउ, राइट?
That in itself became such a big deal. That was the first thing we did. ठीक है, इसकी वजह से विद इन अ डे 1000 कस्टमर्स आ गए. ठीक है, आई वाज लाइक ब्लोन अवे. हमारे इतने कस्टमर 2 साल में लैंग्वेज में नहीं थे. इस वक्त वी हैव आई थिंक 24,000 कस्टमर्स. 72 डेज हुए हैं. ठीक है, वी आर अ स्मॉल टीम ऑफ 12-13 पीपल. तो इसके बाद हमने नई डिस्कवरी की. दिस इज जस्ट 2 months ऑफ डेटा. अब एजेंट्स इतने पावरफुल हैं, मैंने कहा यार ये डेटा है तुम्हारे पास, ये हमारी ब्रेक एरर्स आ रहे हैं, व्हाट एल्स कैन यू फिगर आउट. इट फिगर्ड आउट समथिंग सो गुड. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. आई हैव लेड माई लाइफ एज एन इंजीनियर, बट आई डीपली गिव अ शिट अबाउट डिजाइन. मुझे बुरी डिजाइन चीज, लाइक माई एंटायर वाइब इज कि आई लव द पर्पल कलर. ठीक है, बहुत छोटे होते सबको मेरे बारे में जो चीज़ पता चलती है, ही इज द डेवलपर या गाय, ही इज द गाय. माय वाइफ वोर पर्पल कलर ऑन आवर मैरिज वेडिंग सेरेमनी, राइट. लाइक दिस इज हाउ डीप आई एम. अब पर्पल को स्लॉप से मिला दिया एआई ने, तो आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है. वो इंडिगो है जो स्लॉप में आता है, बाय द वे पर्पल नहीं है. सो आई पोटेंशियली आई एम सेफ, राइट. वी हैव स्टार्टेड फिक्सिंग डिजाइन स्लॉप इन कोडिंग एजेंट्स नाउ. वी हैव फिगर्ड आउट कि डिजाइन हैज द सेम इशू. आप एक एजेंट को कह दो यार ये अच्छा सा लैंडिंग पेज बना दो, इट जस्ट लुक्स एट इट्स एंटायर ट्रेनिंग डेटा. उसकी ट्रेनिंग में जो है, जो मोस्ट एवरेज उसको नजर आता है, विच यू डोंट एक्चुअली वांट, वो बना के दे देता है आपको. ठीक है, सो वी फिगर्ड आउट. आई वर्क विद लाइक मे बी 12-13 डिफरेंट डिजाइनर्स. वी आर एडिंग मोर गुड डिजाइनर्स टू दैट, कि आप डिज़ाइन करो ये पेज. और हमने एआई से भी डिज़ाइन करवाया, मल्टीपल मॉडल से, और हमने फिर उनको कंपेयर किया कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. अपेरेंटली डिज़ाइन इज नॉट एन इन्फिनिट प्रॉब्लम इशू, राइट. इट हैज़ अ वेरी डिफाइंड सेट ऑफ एरर्स जो सारे मॉडल्स करते हैं, क्लोज्ड या ओपन. तो हमने उनको बताना शुरू कर दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. इट्स जस्ट 4500 लाइन्स ऑफ बेसिक टेक्स्ट कि ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना. ठीक है, एंड 95% ऑफ आर स्लॉप प्रॉब्लम्स आर गॉन. लाइक अब स्लैश डिज़ाइन के नाम से हमने वो स्किल लॉन्च कर दी. कमेंट कोड के अंदर है, आप जाके ट्राई कर सकते हो. आप उसको स्लैश डिज़ाइन करके, इतनी सारी इसके साथ ऑप्शंस हैं. आपको स्लैश डिज़ाइन स्मेल, वो खुद ही रिसर्च करके आपको बता देगा कि आपके इस डिज़ाइन में क्या मसले हैं जो एआई ने क्रिएट किए हुए हैं. वी ऑल्सो फाउंड आउट फनी थिंग्स, लाइक एक डिज़ाइनर एक बटन की या यूआई की 7 डिफरेंट स्टेट्स को बिल्ड करता है ऑन एवरेज. कि जब आप होवर करोगे तो क्या होगा, क्लिक कर रहे होगे तो क्या होगा, फोकस स्टेट क्या होगी. और एआई बाय डिफ़ॉल्ट 1 या 2 स्टेट बना के कहती है. एआई बाय डिफ़ॉल्ट एआई इज़ लेजी, राइट. इट इज़ ट्राइंग टू सेव कॉस्ट. उन्होंने ट्रेनिंग ये की हुई है भाई, डेटा वो ज़्यादा देर नहीं चल रहा. ठीक है, तो वो लेजीनेस हमने फिक्स कर दी. तो दिस इज द सेकंड थिंग दैट इज गोइंग वायरल. अभी हमने वो शेयर की. ग्रॉक एक्चुअली इज बेटर देन क्लॉड एंड जीपीटी एट फॉलोइंग दिस फॉर गेम्स समहाउ. हमने वो शेयर किया. ग्रॉक वालों को खुद नहीं पता था कि दैट इज द थिंग. अगेन दीज मॉडल्स आर ब्लैक बॉक्सेस. even people who are training them have no fucking clue what is going on in them, right? So the opportunity to discover and invent thing is massive, right? तो हमने वो डिस्कवर किया, ट्वीट किया. Elon Musk just reposted about us, world richest guy. और it's funny thing, he did that around I think 8 p.m. तो इसकी 250 million followers, and then he went to sleep ना. Generally he doesn't go to sleep like till 10 p.m. वो पोस्ट पड़ी रही हमारी पूरी रात. दुनिया देखती रही. ठीक है, उसके बाद मेटा के चीफ एआई साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वैग ने सेम चीज़ जो हमने मेटा के म्यूज पार्क मॉडल में फिक्स की, वो ट्वीट की. ठीक है, और लाइक लुक्स लाइक अ बिग नेम, राइट. अलेक्जेंडर वैंग, उसकी ऑफ आई थिंक 49% ऑफ कंपनी 14 बिलियन की मेटा ने बाय की है. ही इज प्रॉब्ली स्टिल नॉट 30, आई थिंक. He's a young kid like you and I, right? He's like, ये कभी नहीं होता था. It's a massive opportunity. इतना कुछ डिस्कवर हो सकता है जो ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, हमें ऑलरेडी मॉडल्स अवेलेबल हैं. अभी right before this podcast, I was working with a team. We just launched the first 3 trillion parameter model, Kimi K3, उनके साथ काम करके, which works better than GPT 5.6, Sol, Max on like 80% of the benchmarks, which is unbelievable. We will see how it does, but it is unbelievably good. So वो जो बैरियर है ओपन सोर्स मॉडल ने ब्रेक कर दिया हुआ है. हमारा नाम कम्युनिटी में बेसिकली ये बनता जा रहा है कि these are the guys जो ओपन सोर्स मॉडल्स को बिल्ड कर रहे हैं
ओपन सोर्स मॉडल्स बाय डिफॉल्ट आपको इकोनॉमिकल एआई देते हैं, ठीक है, चीप एआई, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है। तो और मेरा बिलीफ ये है, इन नियर फ्यूचर 500 मिलियन बंदा कोड कर रहा होगा, दिन में से 400 मिलियन बंदों को नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, एंड 400 मिलियन उनमें से $200 पर मंथ भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, राइट। और टू टेस्ट दिस आइडिया आउट, आई वर्कड विद सो मेनी थिंग्स, आई वर्कड विद माय टीम, सबने शुरू में मजाक उड़ाया ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा $1 का अकाउंट लॉन्च करते हैं, $1, उसमें $10 होंगे, वी विल बर्न मनी, आई नो वी आर बर्निंग मनी, बट वी विल बी एबल टू प्रूव, क्योंकि बहुत सैचुरेटेड मार्केट है। एक डेवलपर कहता है यार कर्सर मेरा चल रहा है, मैं तुम्हारा क्यों ट्राई करूं, मेरा क्लाउड कोड चल रहा है, मैं क्यों ट्राई करूं। और वो ट्राई करना भी बड़ा मुश्किल है, वेस्ट अ लॉट ऑफ योर मनी जब आप फिगर आउट कर रहे हो। आपके पास, आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपके पास लिमिटेड टाइम है यार, आपका बॉस, आपका मैनेजर कह रहा है यार करो, व्हाई वुड यू यूज अ चीपर मॉडल दैट माइट नॉट इवन वर्क, यू हैव लिमिटेड टाइम ना, ठीक है। तो यू हैव टू इंसेंटिवाइज देम कि यार करो, देखो तो सही, नोबडी वाज गिविंग अ शिट अबाउट अस। आई विल टेल यू वन फन थिंग, हम हर साइन अप होने वाले यूजर को $10 फ्री दे रहे थे, नोबडी गिव अ शिट अबाउट अस। हमने $1 की उस पर लगा दी, $1 का $10 दे रहे हैं अब। सो यू नो आइडिया। ऑब्वियसली उस वक्त हमने ओपन सोर्स भी फिक्स नहीं किया हुआ था, फुल पिक्चर ये है कि हमने ओपन सोर्स भी फिक्स किया है, राइट। बट वी वर एबल टू कन्विंस बिग चाइनीज एंड यूएस लैब्स के ओपन सोर्स मॉडल्स आर इट, ठीक है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्रॉबेबली $1000 से $2000 की एआई यूजेज करेगा पर मंथ, ठीक है। मुझे बताएं कि अभी you mentioned about $1 a month subscription that basically costs $10 a month, and this is sort of similar to जो इससे टोकनॉमिक्स की पूरी डिस्कशन चल रही है ना। एक तरफ क्लाउड कोड है, लेट्स से आई यूज़ $200 क्लाउड कोड, और मैंने ना अभी रिसेंटली अपने एजेंट्स को ये बोला, मैंने कहा यार तुमने एक्चुअल टोकन कॉस्ट के ऊपर जो है उसका ट्रैक करो, तो क्या बन रहा है। तो वो एक्चुअल अगर इफ आई वाज जस्ट यूजिंग क्लाउड एपीआई एंड पेइंग फॉर द टोकन्स, तो वो $200 के ऊपर जो मैं तुन के 24 घंटे कोडिंग कर रहा होता हूँ, वो शायद $4-5 हज़ार ऑफ एपीआई कॉस्ट होती है। नाउ आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड, इज दिस बिकॉज वो एपीआई की कॉस्ट बहुत ओवर एक्सपेंसिव की भी है उन्होंने, बिकॉज कंपनीज आर पेइंग फॉर दैट, और इज इट बिकॉज वो $4000 की कंप्यूट को वो एक्चुअली $200 में सब्सिडाइज कर रहे हैं, जस्ट दैट इनफ पीपल आर एडिक्टेड टू इट, कि इवेंचुअली एक स्केल के बाद होता वही है ना, $20 पे शुरू करते हैं, $20 पे आपके 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर जैसे ही आप थोड़ा सा स्पीड अप होना शुरू होते हैं, पता लगता है वो $20 तो अब 15 मिनट में क्रेडिट आउट हो रहा है। Yep. फिर आप 100 पे जाते हैं, आप 200 पे जाते हैं, मैं 200 तक पहुंचा हूँ, अब मैं क्रेडिट आउट होना दोबारा शुरू हो गया हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यार मैं किसी तरह 2 अकाउंट बना लूँ, फिर मैं एक सर्टेन पॉइंट पे वो लिमिट आउट होकर के आई विल हैव टू गो टूवर्ड्स द टोकन्स। अच्छा, इसी की पूरी फ्लिप साइड क्या है कि मैं तो चलो पाकिस्तानी हूँ, मैं एक रैंडम अपना खेल कूद रहा हूँ कि इसमें पोटेंशियल क्या है। दूसरी तरफ आपकी बड़ी बड़ी $1 बिलियन एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने जो एआई ब्लैक पिल होके डबल डाउन करके घुस गई, और इट वाज ऑल अबाउट टोकन मैक्सिंग, एंड नाउ ओवर द लास्ट 1 मंथ द एंटायर कॉन्वर्जेशन इज कि ये तो सारा चूना लग रहा है और ये स्लॉप है, और एवरीबडी इज, ऑल दीज एम्प्लॉईज आर creating Frankenstein useless monsters through these tokens. So you need to limit them, and you need to say कि भाई कोई आपने इकोनॉमी ऐसी क्रिएट करनी है जिसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर के अंदर, लिमिट के अंदर रहते हुए वो खुद से बंदा ये एफर्ट डाले कि यार मैंने काम की चीज़ बनानी है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्कलोड अवेलेबल है। अनलिमिटेड आप कर देंगे तो वो बंदा फालतू की चीज़ें बनाता रहेगा और उससे कुछ होगा नहीं। तो वहाँ पर ऑन द अदर हैंड वो भी कहीं ना कहीं डिमांड एपीआई की भी कम होना शुरू हो गई है। एंड जो ये मॉडल है इस वक्त, बिकॉज आपने थोड़ी देर पहले बोला, आपने कहा इन्फ्रेंस की एक्चुअली कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी है। अच्छा, लोगों को कन्फ्यूजन है, लोग तो ये कह रहे हैं कि यार इन्फ्रेंस इज वेयर एवरीबडी इज लूजिंग मनी, बिकॉज $1 की सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैं $10 बर्न कर रहा हूँ, राइट। सो देयर इज नो रियल सेंस ऑफ, मैं आज जब इसको यूज़ करूँ ना, आई कैन सी द पोटेंशियल, टू बी ऑनेस्ट। आपने 60 डेज के अंदर कंप्लीट पर्सन हु हैज़ नॉट डन एनी टेक्निकल वर्क टू लिटरली, मैं पहले दिन मैंने बैठा और मैंने बैठ के उसको बोला, मैंने कहा कुछ बना दो, तो मुझे कह रहे होम ब्रू दिस दैट। मैं कहा भाई जानू ये होता क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन तो कर। कल मैंने फिगर आउट करके मैंने लिटरली अपनी फ्लीट ऑफ एजेंट्स बना करके मेरा पूरा वो लूप इंजीनियरिंग तक मैं पहुंच चुका हूँ, जो कि मैं लूप इंजीनियरिंग हफ्ता पहले मैंने सुना, मैंने कहा हो अब ये सैन फ्रांसिस्को में टेक्निकल चीज़ आई। It was 4-5 days of transition, and anyone can jump onto whatever bandwagon, and I'm there yet. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, मैं तो अगर मैं स्मॉल मीडियम बिजनेसेस में घुस जाऊँ तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, so on and so forth.
क्वेश्चन आखिर में ये आ जाता है कि यार आज तो ये चल रहा है, कल को मार्केट फ्लिप होती है, बबल बर्स्ट होता है, हिट किसको पड़ती है? क्या टोकन कॉस्ट बढ़ेगी जिसकी वजह से मेरी बिजनेस मॉडलिंग आउट हो सकती है? मैं इंजीनियरिंग बिजनेस मॉडलिंग में नहीं घुस रहा, मैं सैन फ्रांसिस्को में नहीं बैठा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉर्पोरेट अमेरिका को या मैं एसएमई को टारगेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मैं आपके वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर दूंगा, जो दुनिया में बहुत सारे एआई को यूज करके आप रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेरी डिपेंडेंसी सारी की सारी टोकन की इकोनॉमिक्स के ऊपर है कि यार मैं सीख जाऊंगा टेस्ट, मैं सीख जाऊंगा वैल्यू, मेरे पीछे से टोकन की कॉस्ट जो है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए ताकि मैं उसके हिसाब से अपनी आगे प्राइसिंग कर सकूं, राइट? सो वेयर डू यू सी दैट गोइंग, considering whatever you understand about it right now? So this is now turning into a Lex Fredman podcast, which which I love. I'm all for it. I love the idea of 4 hour long podcast जिसमें एक issue को निकाल के परे करके बंदा आए, ठीक है? This is my kind of talk now, ठीक है ना? Hmm. I'll be honest, like अपने बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, but अगर आप नहीं करोगे तो nobody will give a shit about it, right? This so many things you said, जिस पे मेरी इतनी सारी opinions हैं जिसके ऊपर इतनी सारी bet ली हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल AI फैट नहीं है, देयर इज नो बबल, ये मेरा बिलीफ है. यू डोंट हैव टू बिलीव मी, बट मेरा बिलीफ मजाक नहीं है, एवी रैंडमली नहीं आया हुआ. आई हैव लिटरली लॉस्ट लाइक $200 million while building this belief, right? From oh यार हर वक्त कोई आके, like I used to watch a lot of TV just like 6 months ago. I used to be polyphasic. आजकल मैं नहीं हूँ वैसे. Generally I am polyphasic. I go to sleep twice a day and I wake up twice a day. I get to have like 48 hours and 24 hours. मेरी productivity generally ज़्यादा होती है लोगों से. But nowadays I'm averaging out 20 hours of work daily, no weekends, right? This is how massive the opportunity in AI is. I wasted 3 years thinking कि यार हर कोई, मैंने एक AI के ऊपर मूवी देखी थी, it was the most boring thing ever. Mr. Robot, like I couldn't handle that कि ये क्या कर रहे हो यार, ये कहाँ जा रहे हो, ठीक है? तो I think what has happened is बहुत सारे इंजीनियर्स इसको फेक समझते हैं और वो डिले करते रहते हैं, और वो डिले is going to cause them a lot. It sounds very weird when I say this out loud, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इसके ऊपर फजूल कंटेंट स्लॉप बना के इसको बहुत टेकी और कॉर्नी बना दिया है, ठीक है? द थिंग इज nobody has figured out shit right now. I keep coming back to it. पता ही नहीं है बिजनेस मॉडल क्या होगा, ठीक है? अभी हम ये टोकन्स की इतनी बात कर रहे हैं, 90s के और अर्ली 2000 में हम फ्लॉप्स की बात किया करते थे. फाइल सिस्टम्स वर द बिगेस्ट शिट आउट देयर. Nobody talks about it. NVMe ड्राइव लगाते हो, बिलियन क्वेरीज पर सेकंड मिलता है, nobody gives a shit. मेरी सारी मेमोरी की रिसर्च ये थी कि why is memory in a database? और मेरी मेमोरी की रिसर्च ये थी, I hate maths. Why am I putting इतनी बड़ी giant vectors की डायमेंशंस उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर? ये तो दिस विल मेस अप. कैन आई कन्वर्ट दैट इनटू स्केलर वैल्यूज ताकि मैं मैथ ना करना पड़े मुझे, ठीक है? और कैन आई जस्ट पुट इट इन फाइल सिस्टम डिस्क फोल्डर बना के, एंड दैट वर्कड आउट रियली वेल, ठीक है? उससे मैंने ये लर्न किया कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो चली गई है, ठीक है? जो प्रॉब्लम स्केल के अब हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है? तो आपकी बात को वापस लेकर आता हूँ. अब मुझे अभी बिजनेस इनसाइडर ने कोट किया इसी चीज़ के ऊपर कि टोकनॉमिक्स पे क्या हो रहा है, टोकन मैक्सिंग में क्या हो रहा है, विच वॉज वेरी ऑड. लाइक आपको अपनी पीआर कमानी पड़ती है और वो खुद आपके लिए आके आपसे पूछ रहे हैं, so इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग गुड ना, ठीक है? आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ इट लाइक यार मुफ्त की पीआर मेरे लिए नहीं. इट मीन्स कि दिस इज व्हाट दे गिव अ शिट अबाउट राइट नाउ, राइट? हो क्या रहा है? अब हर किसी का डिफरेंट बिलीफ है. मेरा बिलीफ ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को $1000 से $2000 पर मंथ की इन्फ्रेंस चाहिए होगी, बस. दैट इज माई बिलीफ. आप जैसे मर्जी, जौन से मर्जी मॉडल्स लगा लो, ओपन या क्लोज, आपको तकरीबन $1000 से $2000 की इन्फ्रेंस चाहिए होगी. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. Just because you are alive today, you need to spend $300 to $400 or maybe let's say $500 on your car maintenance, uski oil, uski gas. 100 years ago, this problem did not exist, right? हमारे पास इतने अच्छे मॉडल्स हैं कि दे आर एबल टू डू सो मेनी थिंग्स जिसकी हमने डिस्कवर भी नहीं की वो क्या क्या कर सकते हैं हमारी जिंदगियों में, ठीक है? तो ये मेरा प्रेमिसेस है मेरी थिंकिंग का कि ये तो चाहिए होगी. कितने लोग उसमें से अफोर्ड कर सकेंगे? ना होने के बराबर.
So I'm building this company for 400 million those people जो afford ही नहीं कर सकेंगे bro. ठीक है. Hmm. तो engineering है problem solving का नाम. Problem है people want $1,000 worth of inference. They want to pay $10 or $100 for it, right? We are this close to figuring that out. If you narrow this problem down, if you buy $1 account on our company, you get $10. That's 10x value. In near future, if you do 100, we can give you 1,000. That is the goal we are after. We are very close to it. We are almost profitable already. It makes no sense, right? Nee, but that's the question, right? So the engineering I'm part, I understand. I'm trying to understand the economics of it. You're saying you give me $1 and I give you $10 value. Is that $10 value you subsidizing that and burning your cash, or is no. that $10 That is value engineering. basically? So that means that the compute cost is still $1. You're No, giving $10 no. value of today's worth of inference, but over time the value of inference is going to narrow down. So think of it like this: the reason why a lot of people are saying the AI is a bubble, financial bubble, not a technical bubble, right? Yeah. I would differentiate between the two, similar to what happened with .com, where all the money went into the infrastructure development that gave us the internet, the fibers and the telecom and so on. But the real value actually was not in the fiber optics. The real value was on top of that, where you created these companies like the Amazons and the Googles of the world. So the technology was very real. The finance bros of New York were putting money elsewhere, and that helped everybody get free internet. The question then comes in कि यार आज सारा data center के ऊपर जो investments हो रही हैं, maybe the value does not lie in the inference, because the inference is eventually going to tank in value once the FOMO demand goes out, and then real demand focuses on real value, and overall then आज tokens की शायद cost है, कल token सिर्फ एक subscription होगा. Doesn't really matter. इंटरनेट के जीबीज की तरह कि मैं कितना कर रहा हूँ. एक ज़माने में जीबीज भी टाइम्ड होते थे, वो टैप्ड होते थे, आपको याद होगा, राइट? So in that case, then you just the infrastructure companies just end up as an infrastructure company. You pay $200 subscription for your intelligence, just like you pay $200 for your internet, just like you pay XYZ for whatever. That's one direction of where this might lead. No, this is, how should I put it? This is very black and white thinking. .com boom hua or bust hua. I don't think of it that way. I was not old enough to be able to analyze it very well. So I'm not going to take a stab at it. I think for software engineering industry, I only think about software engineers, right? I'm a software engineer. I'm deeply focused on my field. I'm not saying कि मैं सिर्फ technical बातों पे focus करता हूँ, but I only give a shit about my people. I am like that, right? I think software engineering की सारी industry शुरू ही वहाँ से हुई. When I was graduating, I had no idea software engineers could make like $100,000 a year when other fields are making $12,000 a year. What? Right? Made no sense to me, right? I think inference is not that simple. पहली बात, value तो अभी समझ ही नहीं आई कितनी ज़्यादा है, ठीक है? अभी तो डिस्कवर कर रहे हैं. मेरे फादर, ही इज़ अ डॉक्टर. He's technically sound, like he's not an engineer. I gave him ChatGPT access. He sets papers for MMDC and like a bunch of medical stuff. और वो लोगों का बहुत सारा रिव्यू भी करते हैं पेपर. Now he's able to review so much more work, and he adopted to that workflow without any help of mine. Like he told me कि यार I can just like now I know. फिर then he naturally said कि यार ये paper set भी कर दो. I will just do the human thing. I will read कि क्या है. My father believes in कि अगर 4 MCQ की options हैं तो 3 absolutely different होनी चाहिए. This is actually what PMDC, I think, अगर अभी तक है PMDC, वो ये कहता है. ये नहीं होना चाहिए बहुत similar options दे दी और स्टूडेंट को confuse कर दिया. तो इस तरह की चीज़ को सही करने में अब्बू को बहुत टाइम लगता था. अब अब्बू किसी का भी पेपर देख के उसको इजीली सही कर देते हैं कि यार ये आप ऐसा स्टूडेंट को पेपर नहीं, ये दे दें आप, ठीक है? अभी तो वैल्यू हमें समझ नहीं आ रही कितनी ज़्यादा है. वैल्यू मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूँ. लाइक वैल्यू तो इतनी ज़्यादा है कि इसलिए तो जीपीयू कंस्ट्रेंट है. वैल्यू मैक्सिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है. अभी हमें पता ही नहीं है कि वैल्यू कहाँ पे जाके रुकनी है. आपके आपकी कार की इनफ वैल्यू है, आपको रफली पता है कि वो क्या कर सकती है, ठीक है? हमें अभी पता नहीं है कि एआई की वैल्यू क्या है, ठीक है? ये वाकई ही वैल्यूएबल है. बहुत सारे लोगों को तो अभी यही नहीं पता, ठीक है? बहुत सारे समझते हैं फैड है, फोमो है, ठीक है? उसके बाद है इन्फ्रेंस इकोनॉमिक्स. ये जो एआई है यही यूज हो रही है टू फिक्स दैट प्रॉब्लम. पहले कभी नहीं था ऐसा.
You could not just invest $1 billion or $100 billion in infra of setting up internet, and internet will not just cause you to optimize that same infra. Like, it's a very nice Cambrian explosion of value, right? वही मॉडल बनता है, वही यूज हो रहा है टू फिक्स द नेक्स्ट मॉडल जो आ रहा है. इट्स अनबिलीवेबल. ठीक है. और इन्फ्लुएंस के अंदर बहुत मजे मजे की चीजें डिस्कवर हो रही हैं. वीरैम के अंदर लाइक मैं इस बिजनेस में इतना डीप आया तो मुझे पता चला एक्चुअली वी आर जस्ट पेइंग फॉर कैश. इनपुट और आउटपुट की कॉस्ट मैटर ही नहीं करती. एवरीबडी आई टॉक टू इज लाइक यार इसका आउटपुट बहुत महंगा है, इसका इनपुट. यू आर एक्चुअली जस्ट पेइंग फॉर कैश. जितना आप डीप जाते हो आपको पता चलता है इट्स ऑल कैश. ठीक है. आप एपीआई की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि आपको वैल्यू कैसे मिलेगी. आप एपीआई को कैसे यूज़ करते हो हमें नहीं पता. ठीक है. तो एपीआई पे हमें सर्वर्स रखने पड़ते हैं, जीपीयूज रखने पड़ते हैं हर वक्त, और वो हर 22 सेकंड हमें कॉस्ट कर रहे हैं. और किस तरह आप यूज़ करोगे हमें कुछ नहीं पता. हम उसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते. आपने एक रिक्वेस्ट भेजी अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैश थ्रैशिंग पे रिसर्च अभी पब्लिश की थी लाइक अ मंथ अगो. वी वर एबल टू मूव आवर कैश थ्रैशिंग, मतलब कैश को थ्रो अवे जो कर रहे थे हम, अप टू 97% मीडियन, राइट. लाइक 97% कॉस्ट 1/10 कर दी हमने आपके सारे वर्कलोड की, क्योंकि हम हार्नेस को कंट्रोल करते हैं. आप कहते हो यार ये कर दो मेरी कोड बेस में. अभी हम सिर्फ यहाँ पे हैं, प्रोडक्टिविटी पे भी हम आ रहे हैं, हम गुई लॉन्च कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लाइक पूरा स्टैक लॉन्च करेंगे. कर्सर इज फकिंग गॉन. ठीक है. ग्रॉक बन जाएगा. आजकल उनका बड़ा बुरा टाइम चल रहा है. उन्होंने दे हैव बीन फाउंड अपलोडिंग यूजर्स डेटा और ये. कर्सर एक्वायर हो गया. कर्सर इतनी बड़ी कंपनी बन गई, $60 बिलियन कंपनी, सर्वाइव नहीं कर सकी. ठीक है. क्योंकि दे डिडंट नो व्हाट दे वर डूइंग. नोबडी नोज व्हाट दे आर डूइंग. आजकल के स्ट्राइप और अमेजोन नहीं बन सकते. ठीक है. ये वैल्यू हमें समझ नहीं आ रही कहाँ जा रही है, और जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है पहले का वही होल्ड कर रहा है सारे कार्ड्स. ठीक है. अब ये इसको एक मिनट साइड पे रखते हैं, वापस आते हैं कैश के डिस्कशन पे. आप एपीआई पे पता नहीं क्या करो, मुझे नहीं पता. आप 10 रिक्वेस्ट भेजो, दोस 10 रिक्वेस्ट आर गोइंग टू कॉस्ट मी 100 टाइम्स मोर. क्योंकि आप कब भेजते हो मुझे नहीं पता. ठीक है. आप कंटिन्यूसली भेज रहे हो नहीं पता. मुझे अपने सर्विस रखे हुए हैं मैंने कि शायद आप आओ और शायद यूज़ कर लो की बेसिस पर. दैट्स वाई दे आर कॉस्टली. ठीक है. मैं अगर आपको सब्सक्रिप्शन बना के देता हूँ, मुझे कंप्लीट आइडिया है कि आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, आपका कंटेंट कैसे लोड होगा. आप कहते हो यार मेरी ये चीज़ें हैं और इसको जाके ऐसे ऐसे फिक्स कर दो, मेरी हर पॉडकास्ट के बाद रिलीज नोट्स निकाल दिया करो. ठीक है. आपने तो अपना टास्क दे दिया, लेकिन जिस चीज़ को आपने दिया वो हार्नेस हम कंट्रोल करते हैं. हमें पता है, हमारी हार्नेस को पता है कि हमारा पीक आर क्या है, हमारे कौन से मॉडल पे क्या हशर हुआ हुआ है इस वक्त, कहाँ की वीरैम, कहाँ का प्रीफिल का बुरा हाल है, कहाँ के डीकोड को मसला हुआ है. प्रीफिल इज द इनपुट, डीकोड इज द आउटपुट. ठीक है. हम दोनों को सेपरेट करके यूज़ कर लें, हम स्मार्ट राउटिंग कर लें, ये कर लें वो कर लें. बहुत सारी चीज़ें हमें पता है जिसकी डिटेल में आप ना जाओ, ना जा सकते हो. और वो ऑप्टिमाइजेशंस हम करके ना सिर्फ हम एक्चुअल एपीआई कॉस्ट डाउन ड्राइव कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी इन्फ्रेंस इंजन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल मैंने भी एक छोटी सी रिसर्च की है. इट्स नॉट पब्लिक, आई कैन जस्ट शेयर. आई कैन इन प्लेस रिप्लेस द मॉडल इन अ जीपीयू नाउ. आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर नोबडी हैज डन दिस. ठीक है. लाइक इतने कटिंग एज पे हम बैठे हैं, और यू कुड, एनीबडी लिसनिंग टू मी कुड डू दिस, बिकॉज ये नई स्पेस है. ठीक है. एक मॉडल वी रैम वीडियो रैम जीपीयू के अंदर लोड होता है. ठीक है. यू कैन मेक इट स्लीप एंड वेक अप. लेट्स से आपके पास 8 RTX 6000 हैं और 96 GB उसकी रैम है, तो यू हैव लाइक 750 GB ऑफ रैम. आप एक मॉडल कॉन्ट उठाते हो, वो 500 GB का है, आपने लोड किया, 500 GB रैम चली गई, आपके पास बाकी बची 250 GB ऑफ रैम. आप उसमें दूसरा मॉडल रख ही नहीं सकते. एक मॉडल की यूजेज कम हुई, उस मॉडल को निकाल के बाहर करने और दूसरे मॉडल को डालने में 40 मिनट्स का टाइम लगेगा. उस 40 मिनट्स के टाइम को मैंने मिनट्स में कर दिया है. एंड नाउ वी लाइक होली शिट, अब इससे हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. आई एम श्योर और लोगों ने भी किया होगा. a bunch of smart people are arriving to the same nice good ideas at the same time, independently of each other. That is how good AI is right now. Right. हमें आइडिया आता है यार अगर ऐसे 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 हो, हम वो कह के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, उसने वो पूरा सिमुलेशन बनाई होती है, एंड वी आर एबल टू सी अच्छा ये नहीं हो सकता. ठीक है. लेट्स थ्रो दैट अवे. राइट. या ये हो सकता है. तो द थिंग इज, inference is not that simple.
इन्फ्रेंस के अंदर इतना कुछ है जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था. लाइक फाइल सिस्टम में इट वाज कितनी हार्ड डिस्क है आपके पास. हार्ड डिस्क में आप डेटा डाल दोगे, डेटे को निकाल के क्या करोगे? आपने डेटा डाला है, या तो डिलीट कर दो या यूज कर लो, वो पड़ा है वहां पे. ये थ्रो अवे इंटेलिजेंस है. एक जीपीयू में एक मॉडल डाला, मॉडल डिलीट किया, दूसरा डाल दिया. इट्स अ वेरी डिफरेंट साइंस. इसकी टोकेनॉमिक्स बहुत डिफरेंट हैं. इसका अभी टोकेनॉमिक्स पे इतनी ज़्यादा बात होती है, हम अभी पहुंचे ही नहीं है वहाँ पे. अभी एक्सपेरिमेंटल इतना कुछ चल रहा है, इतनी वैल्यू ड्राइव की जा सकती है. ठीक है, मेरा स्टार्टअप इज प्रूफ कि ये किया जा सकता है. ठीक है, अभी 2.5 months ago no VC in Silicon Valley was touching this idea कि यार ओपन सोर्स नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग. ठीक है, हमने इतना शोर डाला. इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी हार्नेसेस हैं, ओपन कोड ओपन सोर्स हार्नेस है, हमारा काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर है ओपन सोर्स. वो पोटेंशियली दे डोंट गिव अ शिट अबाउट ओपन सोर्स. मतलब ओपन कोड में क्लॉड डाल लो, जीपीटी डाल लो और यूज़ कर लो. लेकिन राइट, आपने क्या किया फिर? राइट, तो हम भी ओपन सोर्स जा रहे हैं. 6 साल पुरानी कोड बेस है, उसको देख रहे हैं उसमें क्या शुरू हुआ है. बाय द एंड मंथ होपफुली वी विल बी ओपन सोर्स. राइट, तो ऑल आई एम ट्राइंग टू कम टू एस कि एक तो वैल्यू बेसिकली अभी पता ही नहीं है कितनी ज़्यादा है. ठीक है, दूसरा टोकनॉमिक्स जिस हिसाब से टोकन्स और मॉडल्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं उसका नहीं पता. ठीक है, अभी एक मॉडल लॉन्च हुआ है, आई एम नॉट गोना नेम नेम्स. 1 million कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की विंडो स्लाइडिंग विंडो है. डेवलपर्स को देख के कह रहे हैं यार ये इतना सस्ता है, वाह, लेकिन वो अंदर से स्लाइड कर रहा है यार. वो 256 के कॉन्टेक्स्ट को इधर लेके जा रहा है, उधर लेके जा रहा है. इट्स एक्चुअली डम. अभी एक और मॉडल लॉन्च हुआ है जो एक नई रिसर्च है मॉडल के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, अटेंशन के ऊपर. इतना कुछ हो रहा है. ठीक है, ये इतना मैसिव हो रहा है. अब मैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ. मुझे ऐसी गट फीलिंग आई, मैंने कहा यार ये डिस्क ने बहुत ऊपर चले जाना है. व्हाट इज द डम्बेस्ट थिंग आई कुड डू? कौन सी यूएसबी फ्लैश और ये सैनडिस्क की होती हैं? आई शुड पुट सम मनी इन सैनडिस्क. आई विश आई हैड पुट मोर. ठीक है, मैं अपने आप को रिट्रेन कर रहा हूँ. ठीक है, दैट 2000x हो गया वो स्टॉक इन अ ईयर. आई एम लाइक शिट ब्रो, शिट. ठीक है, स्टिल आई गॉट अ बंच ऑफ वैल्यू फ्रॉम इट. ठीक है, तो अभी ये द सब रीजन कुछ मैं हो रहा थोड़ा है. सा अगर आप हाँ यहाँ पे हाँ. पॉज करूँ ना, देखें द रीजन व्हाई इट्स वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग इज बिकॉज अब आपने बोला ये डिस्क वाली चीज़ या वी रैम वाली चीज़. The reason why it's very confusing for the outsider is because at one point you're saying, okay, look at this SanDisk, the value has grown so much. Look at RAM, like Samsung and all of those RAMs are now where they are. Dusri taraf, it is people like yourself who are actually working to kill the value of or the bottleneck of let's say RAMs or disks, right? Because that's where you realize के अगर मैं कहता हूँ कि यार रैम की इतनी वैल्यू है एंड रैम की वैल्यू की वजह से द रैम प्राइसेस हैव गॉन अप एंड द डिमांड इज सो हाई, द सप्लाई इज सो लो, देयरफॉर द स्टॉक प्राइस इज सो हाई. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द कस्टमर जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है वो कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता. तो एट अ सर्टेन पॉइंट दैट थिंग इज गोइंग टू स्टार्ट ब्रेकिंग एंड देन द वैल्यू और द डिमांड विल गो स्लोअर अनलेस दरमियान में कोई बंदा आए और आके उसको इतना ऑप्टिमाइज कर दे कि विद द सेम अमाउंट ऑफ रैम्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ हार्ड ड्राइव्स you can actually get the same amount of intelligence, right? At that point, then the demand stops and therefore the value then tanks. Again, same thing happened with the internet as well, where होता क्या है कि जो इन्वेस्टर है ना वो एक लॉन्ग इनफ होराइजन में नहीं देख रहा होता. वो एक फोमो की मार्केट के अंदर वो अगली नेक्स्ट बॉटलनेक के ऊपर कॉन्स्टेंटली जंप करके इन्वेस्ट कर रहा होता है. Bottlenecks are built to solve, and this is how economics works, where the entire premise of innovation is कि जैसे ही किसी चीज़ पे बॉटलनेक पड़ता है उसकी प्राइस हाई होती है इस वजह से ताकि उधर इनोवेशन हो और इनोवेशन होकर वो बॉटलनेक ब्रेक हो जाए. जब वो बॉटलनेक ब्रेक होगा तो इवेंचुअली उसकी वैल्यू नॉर्मलाइज होगी. द रीज़न वाई एआई का फाइनेंशियल बबल है वो इस वजह से बिकॉज एंड एवरी मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द लास्ट 400 years हैव हैड द सेम बबल्स वेयर चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, कि जब हाई वैल्यू आपको नजर आती है तो बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं और बॉटलनेक्स के ऊपर पैसा लगता है तो एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड देन दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन टिल द टाइम के सर्टन फाउंडेशनल बेंचमार्क्स क्रिएट हो जाते हैं एंड एवरीबडी नोज दिस इज द सिस्टम. द रीजन व्हाई वी आर ऑल कंफ्यूज्ड इज बिकॉज वी डोंट नो what the system is, so everybody is just plowing money wherever they can to solve whatever they can, right? But I just want to get the last opinion on this. I'll break this down into two very specific parts.
One is the hardware inference layer, which is a bottleneck right now of intelligence abundance, I would call it. ठीक है. The other is the intelligence layer per se. I don't care. मेरे पास unlimited hardware है, मेरे पास limited hardware. I don't really care. The quality of the models will define, or the quality of the product on top of that, not just the models. Whatever that product is, whether that's an agent for coding, whether that's an agent for solving XYZ problems in accounting, medical, or whatever, that's a separate that's a separate software layer problem of how you've trained it, how you optimize it, so on and so forth. How do you see the hardware layer of it? Because the hardware layer right now is a physical bottleneck, जिसके साथ आपकी memory bottleneck tied है, disk bottleneck tied है, energy bottleneck tied है, एंड आप उसमें सॉफ्टवेयर लेयर के ऊपर जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन कर लें, अगर आपने प्योरली उसको करना है ना कि इंटेलिजेंस अबंडेंस, डिस्कवरी अबंडेंस, वो सारी सारी हार्डवेयर बॉटलनेक है. एंड सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज if that hardware bottleneck remains for the next, let's say, medium term, then an average person like me who is looking to generate discovery in whatever area, उसको कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट रहेगा. वो इस वक्त क्या ना कहेगा कि यार आज तो शायद मुझे सब्सिडाइज हो रहा है, द मोमेंट द कैश रन्स आउट, वो सब्सिडी खत्म होगी, नॉर्मल प्राइस के ऊपर आएगा, मैं क्लाउड कोड अगर मुझे $200 के ऊपर मैं That is लगाऊं, happening. सेम वैल्यू मुझे $5,000 देने पड़े, मैं नहीं दे सकता यार, मेरे पास नहीं है पैसा, तो मैं सडनली रुक जाऊंगा. मैं कहूँगा चल वेट फॉर द मनी टू इवेंचुअली नॉर्मलाइज. एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि क्या इस वक्त कैश बर्न हो रहा है अगर मैं $200 क्लाउड को दे रहा हूँ फॉर दैट. अगर मैं $200 दे रहा हूँ ना, मुझे 200 से 400 पे चला जाऊंगा, मुझे शायद उससे ज़्यादा नहीं चाहिए फॉर एन एवरेज पर्सन. बट अगर उसकी प्राइस जो है वो 5,000 हो जाए अगले 1 साल में, 1.5 साल 2 साल के अंदर, बिकॉज देव रन आउट ऑफ कैश, बिकॉज देर बर्निंग कैश, देन दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी. एंड सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट. Yeah, so those several things you touch on in this now. It's all of this is a very gray area. Like, this is where me being an electrical engineer helps a little bit, right? I might be doing wrong math here. I hate maths, as you can imagine, right? But I think a gigawatt costs about $1 billion, right? And I think Anthropic has about 16 gigawatts of energy bound hai sab kuch, theek hai? In 3 years they will have 75 gigawatts as far as I know. I'm not sure if I'm using the right unit though. Again, I don't look at electrical engineering things anymore, right? They will have 75. हमारे पूरे मुल्क के पास इतना नहीं है, right? Like 1 gigawatt ही आ जाए तो बहुत है, I think. एनर्जी इतनी अबंडेंस में होगी, कभी इतनी चाहिए नहीं थी, उस पर मैसिव अमाउंट ऑफ रिसर्च चल रही है. द वैल्यू दैट इट विल क्रिएट, हु नोज, राइट? अभी एनर्जी कंस्ट्रेंट है, उसके बाद आता है हार्डवेयर का कंस्ट्रेंट. हार्डवेयर का कंस्ट्रेंट असल में थिंग्स यूज्ड टू मूव स्लोली. 99 से 2005 तक कुछ खास हुआ नहीं था. एसईओ गाइस आ गए थे, उनको पता चल गया था इंटरनेट पे चीज़ें बेची जा सकती हैं. वो वैल्यू इतनी जल्दी यहाँ पर इतनी स्पीड से ऑप्टिमाइज हो रहा है सब कुछ, ठीक है. I was just talking to a kid who graduated December last year, who has discovered something. Yesterday की बात है, ठीक है. He's a kid. He has an attention algorithm better than any of the biggest labs out there right now. जेफ टीन उसका इन्वेस्टर है, गूगल का सबसे बड़ा. हर बड़ा इन्वेस्टर, एवरीबडी वांट्स जो उसके पास है. ही इज अ किड, कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिसका, ठीक है. ही रैंडमली इन्वेंटेड दैट. सो अभी तो हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है. हाँ, एक चीज़ हो रही है. माई गट फीलिंग इज आपको 400 नहीं, आपको $1,000 से $2,000, $2,000 तक की इन्फ्लुएंस चाहिए आजकल के रेट के ऊपर, which is being sold to you potentially after subsidies, right? GPT भी कर रहा है और Anthropic भी कर रहा है. $4,000 की आपको इन्फ्लुएंस दे रहा है. बट ये इन्फ्लुएंस की प्राइस उन्होंने फ्रॉम द थिन एयर पुल की हुई है. दे बिल्ट अ मॉडल, दे हैव द हार्डवेयर, दे रैंडमली डिसाइडेड अच्छा फॉर $50 का मिलियन कर देते हैं. देन दे सेड ZDR भी नहीं देंगे, आपका डेटा 30 डेज तक रखेंगे, ट्रेन करेंगे. उन्हें सस्ता मिल रहा है, कुछ नहीं होता. देन दे सेड अगर आपने कोई गलत बात की, हम आपको चार्ज करेंगे $50 पर मिलियन आउटपुट, लेकिन हम सस्ता मॉडल लगा के भेज देंगे. यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, राइट? बट वन थिंग इज ट्रू, कॉज इज नॉट कॉजेशन. वन थिंग इज ट्रू हियर कि आपको इन्फ्लुएंस की वैल्यू जो वो दे रहे हैं $5,000 की या $10,000 की चाहिए, ठीक है. Can we do that with open models is my bet, right? हम आपको वो सेम चीज अगर सिर्फ प्योर इंजीनियरिंग की फॉर्म में दे दें, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, सब्सिडी.
yes, without 100 times cheaper है, like DeepSeek 100 times cheaper है, maybe more from Opus. Fable से तो पता नहीं कितना cheaper है. मैंने DeepSeek improve कर दिया, मेरी लिमिटेड कॉस्ट है, मैं अभी भी बर्न कर रहा हूँ. आई एम नॉट आफ्टर लाइक इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाए. लैंग्वेज में हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी एज अ पाकिस्तान, लाइक योर पैसे कमाने फॉरन प्रॉफिटेबल हो गए, नोबडी टच्ड अस. इस वक्त वी आर अबाउट टू डाई एज अ कंपनी. इस वक्त हम ऐसे चल रहे हैं. एंथ्रोपिक भी इज अबाउट टू डाई कि ये कैसे इकोनॉमिक्स कैसे चलेंगी. हम इतने कटिंग एज पे अभी भी हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, और सारे जो फ्रंटियर पे बैठे हैं वो सारे ऐसे चल रहे हैं कि अगले मंथ शायद वी विल हैव नो मनी, राइट. लेकिन कुछ तो है ना. इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर बर्निंग मनी, वी आर फिगरिंग आउट के हाउ टू एक्चुअली गिव यू $5,000 to $10,000 ऑफ इन्फ्लुएंस इन जस्ट 100 or 200 bucks. वी हैव अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ दैट ऑलरेडी वर्किंग, जिसमें हम आपको $1 में $10 की दे रहे हैं. उसमें ऑफ्टन वी बर्न मनी व्हेन आवर सोल्यूशन फेल्स, often we don't when our solution works, and we are learning अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है. So the more scale we are getting, the more we are optimizing, which my belief is what OpenAI and Anthropic has already done in last 3 years, but they're not sharing because they're pulling the prices of their models out of thin air. आपको, can I share my screen and draw something? Is that If you possible? can. Yeah, go for it. Okay, this one thing that happened that people don't know about. Obviously, controversial opinion, not really what probably is going on, but this is how my brain works, right? Let me see if I can share. I'm a very visual person, so I'll have to draw and talk, right? Okay, so these are the models, right? And the models are Haiku and Sonnet and Opus, right? इस पे हमारी ज़िंदगी चल रही थी, और they were like, how should I put it? Let's call it, ये $5 का मॉडल था, ये $15 का मॉडल था, ठीक है, और ये $25 का मॉडल था, राइट. ऐसे हमारी ज़िंदगी चल रही थी. वी वर वेरी हैप्पी. ओपस 4.5 आता है, बहुत बड़ी चीज़ है ओपस 4.5, और वी ऑल सी कि ये तो ज़बरदस्त है. फिर हाइकू अपडेट होना बंद हो जाता है. व्हाट, वेयर इज होप? हाइकू 4.8, राइट. और फिर सोनेट 5 आ जाता है एकदम से. लेकिन क्या हो रहा है? फिर वो कहते हैं हमारे पास मीथोस है, ठीक है, मीथोस बहुत ज़बरदस्त प्ला है, दिस इज़ द बेस्ट मॉडल वी हैव फॉर यू, एंड दिस विल बी probably here, and we will be doing this. Probably gonna mess up when I drive this point home, but let's see what happens, right? So this is the picture that a normal human being sees with Anthropic nowadays. कि यार ये तो बहुत कोई fantastic model है उनका, ठीक है ना? My belief is different. My belief is that this is not what's going on. ये मैंने separate रखा है ना, शुक्र है, ठीक है? I think this is what happened. Right. So they're basically So they're renaming names, and they're basically increasing the cost because वो subsidy अब afford नहीं कर पा रहे, तो वो no, they have to rebrand it. they can just do anything. The latest Haiku is so good that now it is called Sonnet. The latest Sonnet is so good that now it is called Opus. And the latest Opus you don't get. It is called Fable or Mythos, right? So they basically increased their prices by, I don't know, do the math, I hate maths, right? 10x, right? And you're like, oh shit, yaar, ये कैसे afford करूँ मैं? Like they are, that's why they're saying model में तो हम profitable है, right? We are saying कि हम ओपस लेवल पे पहुंच गए हैं, और ओपस लेवल ही अगर मीथोस है, तो वी कैन डू द लाइक 10x प्राइस तो ऐसे ही डाउन कर देंगे हम. We will sell you the cost without subsidy, like the value without subsidy, right? Without subsidy is easier said than done, but it is now possible to do it, right? And that is what we are doing, right? So much is going on in this space. Like अभी कल रात को मैं बैठा कोड कर रहा था, मैंने GPT, मैंने आई थिंक GPT नहीं, मैंने क्लॉड ओपस 4.8 का मैक्स नहीं, हाई, एक्स हाई से मीडियम पे मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो उसने कहा भाई आपकी सारी कैश उठ जाएगी. एक नॉर्मल बंदे को तो लगेगा अच्छा कैश उठ जाएगी, मुझे पता चल रहा है कि शेट, इसका मतलब है कि ओपस 4.8 मीडियम और एक्स हाई आर टू डिफरेंट मॉडल्स.
वरना कैश क्यों उड़ेगी? कैश इसलिए उड़ती है क्योंकि कैश आपको VRAM में रखनी पड़ती है और सेम मॉडल वहाँ पड़ा हुआ है. मे बी दे हैव अ बंच ऑफ रिसर्च जिसपे वो कैश ऑफलोडिंग करें, बट दैट इज मोर एक्सपेंसिव टू डू. तो अगर मॉडल चेंज होगा तो कैश उड़ेगी. यानी Opus 4.8, X High and Medium are different models. What? Right? So much is going on. These random things that Mythos or Fable, we don't know what the model is, right? We don't know. They're randomly. Yes, it's marketing gimmick. It's just on top. It's brand on top of something. पीछे वो जिस तरह घुमा रहे हैं वो. They're pulling the prices out of thin air because they can. I am saying, we are so close to building our own model, right? Like अगर हम 5 ट्रिलियन पे अभी हैं, हम अगर 10 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इज अ मैसिव वर्कलोड डूड. ठीक है. अगर हम एक साल ऐसे कर लें, वी विल. कर्सर मेड अ बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो सही नहीं कर सके थे. उसको मैसिवली स्केल किया. क्लॉड यूएस के अलावा कहीं मिलता नहीं था. उन्होंने क्लॉड डाला, $20 में $500 की इन्फ्लुएंस दी आपको, पूरी दुनिया में एक्सेस दे दिया. दे बिकेम बैक. VS कोड फोर्क किया. डेटाबेस अपना नहीं था, मॉडल अपने नहीं थे. लाइक and then they couldn't survive the test of the time, and then they're like, okay, let's sell. They were not able to raise 5 billion that they were trying to raise. They burned through 3.6 billion as far as I know. I have a very public video about all this, right? We are doing it differently. There's so much we can do now. We have proven with this test of time that this works. Open models do work now, right? And there's so much you can do. So again, coming back to your point, I think you should be token maxing. I'm not saying this because I am founder of a company which benefits if you token max. I think आपको अगर कोई path मिल रहा है to do something easier in an easy way, you will just take that path ना. Nobody should be able to stop you. And also अगर आप experiment नहीं करोगे, you don't exist a chance ना. Experiment करके waste करके ही आप कहीं जा सकते हो, right? तो लेकिन इतने expensive experiments भी समझ नहीं आते, right? तो all I'm saying is कि current prices का $5,000 to $10,000 of inference एक normal human को irrespective of कहाँ बैठा है वो चाहिए होगा per month. Can we drive that cost down to $100 or $200? That is what our mission is, and that is what we are trying to do, right? तो ये. So that makes sense. I think that part of your thesis I completely agree with. I think intelligence is something जो कि it's an inevitability. Everybody will offload. और आप उसको ये कह लें कि आप अपनी इंटेलिजेंस को ऑफलोड करके डम हो रहे हैं, या आप ये कह लें कि आप अपनी इंटेलिजेंस को ऑप्टिमाइज करके स्केल कर रहे हैं, बिकॉज you're creating second, third, fourth brains and then sort of sitting on top of that as a boardroom. Companies did that when they corporatized. I think humans are corporatizing themselves as well, where the tasks that I do, the dumber tasks, I just offload to my agents, and then I think bigger and more strategic. कितना कुछ आप differently करते हो आप, right? Like my father's professor, who he looked up to, told him when he was 80 years old that always keep doing new things so your brain doesn't become like Alzheimer's पे ना चला जाए, भूलना ना शुरू हो जाए. अब मुझे लगता है हम इतना कुछ नया कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे. पहले आपने एक पॉडकास्ट करनी है, देयर इज डिफाइंड सेट ऑफ टूल्स है. अब आप सोच रहे हो यार मैं इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी कर लूँ, मैं यार ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. दैट इज गुड, राइट? Yeah. So, yeah. No, 100%. Ahmed, I'm going to wrap this up. I'd love to do a round 2 that is focused exclusively on the technicals, because there were 50 threads here that I could have gone into, but I also, like 2 hours is consumer की भी जो है ना वो थोड़ी वो होती है. So I'm going to wrap this up. Thank you so much for taking the time out and sharing all that insight as well. It's incredible what you're doing. I think coming from Pakistan, मैं थोड़ा सा, ये मेरे दिल की बड़ी करीब बात है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अगर आप थोड़ा ग्लोबल फोकस्ड हो, बिकॉज हर इंसान ना कहीं वैलिडेशन चाहता है. उसने काम किया होता है, मेहनत की होती है, उसको होता है यार अपने लोग ही थोड़ा सा सेलिब्रेट ना भी करें ना, वो पीछे से पैट इन द बैक कर दें. For some weird reason, that has been the case with Pakistan. That has happened to me as well, personally, as well as a lot of other people that I know. Pakistanis are very inward looking, and they will celebrate and they will pat on the back a lot of people who are doing, sure, in their scope they're doing great work, but that's very focused on the local. And Pakistan's problems are global, and people who end up being in that global space, उनको बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानियों के लिए, because you're brown, you have a bad passport, you don't understand the cultural context, so you have to spend a lot more time breaking through than a lot of people from, let's say, Europe or the US or whatever. तो आपको वहाँ पे भी हिट पड़ रही होती है, and then back home nobody is really looking at you. Even कर्सर की कहानी अभी बड़ी फेमस हुई यार. The fact of the matter is कि वो बच्चा 2, 3, 4 साल से कर रहा है ये, nobody cared.
लाइक इट वाज ओनली द नंबर 60 बिलियन का एक नंबर है जो कि एक डेढ़ महीने के लिए थोड़ा सा पापा हुआ और फिर वो चला गया एंड नाउ नोबडी केयर्स राइट एंड दैट्स अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस कि भाई अहमद अवैस अगर सडनली बिलियनर हो जाएगा तो एक न्यूज साइकिल के लिए 2 हफ्ते लोग कहेंगे वाह अहमद अवैस बट बाय एंड लार्ज पीपल आरंट इंटरेस्टेड and I get it so I just wanted to say thank you for everything Yeah, that you do sure. Like and I think I'll just probably add one more small thing here. I think if there's one complaint I have from my own, people, Hmm. हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम लोग डिटेल्स में चले जाते हैं. Uh, ठीक है, कर्सर का सौलिया आसिफ वाज वन ऑफ 4 फाउंडर्स, ही वाज फ्रॉम एमआईटी, बच्चा था जब बाहर चला गया. लेकिन ठीक, ही इज अ पाकिस्तानी, राइट? इट्स Yeah, वर्थ सेलिब्रेटिंग. बच्चा yeah. था सत्या नदेला जब बाहर आ गया और अब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, दे आर सेलिब्रेटिंग हिम ना, They राइट? celebrate. They own राइट? him. They या own दे him. वो सो यार हमें अपनी कम्युनिटी इंडियंस नहीं जो है ना वो मिलती. सेकंड बच्चा तो चले छोटे छोड़े जो सेकंड जनरेशन इंडियंस है ना वो इंडियंस उनको ओन करते हैं कि भाई ये इंडियन है बंदा यस. और उसकी जो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है कि जब वो बाहर किसी गोरे के सामने जाता है वो कहते हैं मैं एग्जैक्टली. 1.4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एवरीबॉडी टेक्स हिम सीरियसली हमें मैं अपनी जाता हूँ मैं जाके लोगों से पाकिस्तान बात करता हूँ मैं जाके कहता हूँ यार मेरे पीछे 300 मिलियन पाकिस्तानी है जो कि मुझे नहीं पता मेरे पीछे 300 मिलियन पाकिस्तानी है क्योंकि वो मुझे देख ही नहीं थे वो कहने तू निकल गया तू फक यू ठीक है कह रहा हूँ, यार भाई एग्जैक्टली. तू like you can be my strength I can help you like I can be that bridge so I think that's what I'm saying we need to be more supportive of each other and that support doesn't mean you need to do a lot just एग्जैक्टली. say a few nice आई words when you see थिंक such people हमारे साथ बहुत बड़ा ब्रांडिंग का मसला है और देयर आर Hmm. कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस हु आर एक्सेलेंट इन ब्रांडिंग देयर टैलेंट, ब्रांडिंग देयर वैल्यूज एंड एवरीथिंग, राइट? मैं बाहर आया फर्स्ट टाइम और मैंने देखा पाकिस्तानी फूड ही नहीं है लेकिन इंडियन क्या के बेचा जा रहा है. इंडियन क्या क्या बेचा जा रहा है Peshawari kebab is like Peshawar, like what? Like it is Yeah, not yeah, Indian yeah. food, bro. Like Yeah. long story short, I think अभी वो हालैंड का है ना फीफा पे हालैंड वाज लाइक ओ माय फूड इज इंडियन वो सारी बातें कर रहा है पाकिस्तानी भाई इंडियन फूड में तो मीट ही नहीं होता जो तू खा रहा है बैठा हुआ इसलिए लेकिन हमारा ब्रांडिंग का शदीद मसला है. और हम एक तो सेलिब्रेट नहीं करते, डिटेल्स में हम्म, पड़ जाते हैं. डिटेल्स किसी को भी हेल्प नहीं करती. फलसफी को यू नो बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, राइट? तो वो लाइक बहस में कुछ भी नहीं है. अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्थ सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग. और सपोर्ट जितनी ज़्यादा इन डिफरेंट कॉमों के लोग एक दूसरे को करते हैं, ठीक है? अमेरिका जितना मुझे पता चला है दे आर बिल्ट अराउंड बिल्डिंग इन बिल्डिंग फास्ट. हमने ये न्यूयॉर्क का ये बना दिया लेकिन हमने 133 डेज में बना दिया. लाइक टू थिंग्स दैट मैटर एज अ नेशन. हम लोग बिल्ड नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, अपना क्राउड मिलता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मिलता. आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट बट लाइक इट्स वेरी हार्ड. आप अगर एक पेड फॉरवर्ड नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते और कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट? आई थिंक इफ वी कैन स्टार्ट फिक्सिंग दैट, even if we are just copying how others do it, like how Indians or how US के people, जहाँ पे भी जो भी आपको जो भी लगता है कि हाँ यार these guys have got their shit together, right? If we can just do that, that will create a culture of support जो कि एक young बच्चे को चाहिए to be able to take a risk, to do things out of the ordinary. हम अपने मसलों से निकल के अगर ये करें तो I think that would be so much fun. Right? No, that makes a lot of sense, Emma. Thank you so much for taking the time out, sharing all that insight. It's incredible what you're doing, and I look forward to doing a round 2. Focus on technicalities, but thank you so much for taking the time out. Thanks a lot for having me. And for all of you guys, let me know in the comment section below. First of all, मैं तो बार-बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, if you haven't been black-pilled yet, you need to be on AI right now. No matter who you are, what you do, everybody does not have to be on the engineering technical sides. It's the front, the granular interactive layer of AI that can solve any problem that you have in any industry that you're in. And if you're just interacting with chatbots, which I know almost everybody is one way or the other, that's 2% of AI. Come to the agent side, come to the coding side. You don't have to code yourself, but coding भी पुरानी वक्त की coding फर्क है. अब जो है ना वो code की base के ऊपर actually you're building stuff. And I think everybody needs to be there. So I'm doing a bunch of videos on that as well. Personally, मैं तो पागल हो गया हूँ पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो कुछ मैंने experience किया. It's absolutely fascinating. I'll bring in more conversations for you around that as well. But let me know in the comment section below. Have you explored that? What are you doing with that? But nonetheless, it was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.